أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا توسر وتمم بالخير وبك نستعين يا رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ कै- وبرکاتہ۔ कैसी हैं सिस्टर्स كيف حالكن يا أخوات نحن بخیر لا کل خیر۔ الحمدللہ نحن بخیر اور اس کے بعد جیسے کہتے ہیں الحمدللہ علی کل حال۔ ٹھیک ہے کیا جی؟ یہ آپ کی تجوید کی کلاس ہے، آپ کی ٹیچرز ہیں نورین اکرم اور حفصہ سہیل، اور الحمدللہ سے ہمارا یہ سفر جاری و ساری ہے۔ اور تھوڑی سی ہمیں جو ڈس اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے وہ کہاں سے ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کی حاضری بڑی کم ہے۔ تو جو لوگ آ رہے ہیں کلاس میں الحمدللہ ثم الحمدللہ، اور اگر آپ کو کوئی کسی طرح کا ایشو ہو، کوئی مسئلہ ہو، تو آگاہ ضرور کیا کریں کہ آج کی کلاس میں ہم نہیں آنا چاہتے یا ہم نہیں آ سکتے نا، کوئی عذر ہو جاتے ہیں، بالکل بندہ بشر ہے، کوئی سو مجبوری ہو جاتی ہے، تو کائنڈلی بتا دیا کریں، مجھے بتا دیا کریں یا حفصہ کو بتایا کریں یا گروپ میں بتا دیا کریں، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ جو ہم لوگوں نے اپنے بچپن میں سیکھا تھا، خاص طور پر چھوٹی صورتیں جنہیں ہم نے حفظ کیا ہوا ہے، تو اس میں بہت سی ایسی مسٹیکس ہیں جنہیں ہم نے کبھی غلطی مانا ہی نہیں۔ تو اب یہ کہ انشاءاللہ ہم اپنی ان غلطیوں کو نہ صرف نکالیں گے بلکہ ہم سورہ بینہ تک پہنچ کر انشاءاللہ حفظ کی کلاس، یعنی کہ جو اسٹوڈنٹس چاہیں گے کہ وہ حفظ کرنا چاہتے ہیں، تو یہ جو چھوٹی صورت ہے ان کو آپ اتنا اچھا پکا کر لیں، بار بار سنیں، آپ کو آدھے سے زیادہ تو ویسے ہی یاد ہو جائے گی۔ آپ ایک آیت کو 10 مرتبہ سنیں گے، 10 مرتبہ ریپیٹ کریں گے، تو کافی زیادہ تو آپ کو ویسے ہی یاد ہو جائے گا۔ تو تب انشاءاللہ ہم اپنا حفظ شروع کریں گے، صرف جو سسٹر چاہتی ہیں، تاکہ کوئی چھوڑ نہ جائے نا، کیونکہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ حفظ نہیں کر پاتے ہم، تو پھر یہ کہ گیو اپ کر دیتے ہیں، تو اس وجہ سے نہ چھوڑیے گا کہ آپ کو حفظ کرنا مشکل لگ رہا ہے۔ صرف تجوید بھی ہم انشاءاللہ آپ کی جاری رکھیں گے۔ کوشش تو یہ ہے کہ انشاءاللہ آپ کا اماں پارہ کمپلیٹ ہو تو ہم 29واں پارہ شروع کر لیں۔ اگر آپ ہمارا ساتھ دیں گے، اسی طرح سے ہمارا ساتھ بنا رہا، تو انشاءاللہ ہم اپنے مقصد میں ضرور کامیاب ہوں گے۔ بس تھوڑی سی آپ کی توجہ، تھوڑا سا ٹائم چاہیے، اور اس بات پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں منتخب کیا ہے، اپنے اس انتخاب کو نظر انداز مت کیجیے، تاکہ انشاءاللہ ہم قرآن کو بہت اچھے طریقے سے پڑھنا سیکھ لیں۔ ہم آج کل اپنے مخارج سیکھ رہے ہیں، مخارج سیکھنے کے بعد اور بہت سی چیزیں سیکھنے کے لیے ہم نے مدود سیکھنی ہے، صفات سیکھنی ہے، ہم نے گریڈ سیکھنے ہیں، جس میں کلکلا کے گریڈز ہوں گے، اسی طرح سے مدود کے گریڈز ہوں گے، غنہ کے گریڈز ہوں گے، اسی طرح سے ہم نے تفخیم سیکھنی ہے، ہم نے را کے بارے میں پڑھنا ہے۔ تو انشاءاللہ اگر آپ ہمارا ساتھ دیں گے تو ہم اس لیول کو تھوڑا سا اور آگے بھی بڑھائیں گے، وقف کے جو رموز ہیں ان کو سیکھیں گے، تو انشاءاللہ بہت ہی ہمارا یہ سفر پیارا ہونے والا ہے، اور بہت ہی دلچسپی سے ہم قرآن کو اس طرح سیکھیں گے جیسے ہم نے ابھی تک نہیں سیکھا۔ ہم تجوید کی بہت ساری کلاسز میں جو بیسک چیزیں سیکھ لیتے ہیں، لیکن زیادہ ڈیپلی ہم نے الحمدللہ مدینہ اسینشل والوں سے، مصباح باجی سے سیکھا، اور ہم اسی رول، انہی سسٹم کو آگے لے کے چل رہے ہیں، تاکہ جو ہم نے سیکھا وہ آپ تک پہنچائے اور انشاءاللہ آپ آگے بڑھائیے۔ اچھا جی، ہم نے یاد رکھنا ہے کہ جو مین مخارج ہیں ہماری صرف 5 ہیں، الخیشوم ہے، الجوف ہے، الحلق، الشفتان اور اللسان۔ خیشوم میں یاد رکھیے کہ غنہ ہے، اور نون اور میم ان میں فطری غنہ موجود ہے۔ اگر مشدد ہو جائے تو پھر تو بالکل اس کو سکپ کرنا ہی نہیں ہے، وہاں پر جیسے سم ان،
تو 2 काउंट का गुन्ना करते हुए आगे जाना है। अलजौफ यानी कि हलक और मुंह के जो दरमियानी खाली जो हिस्सा होता है ना, खलासी जो होती है, उसको कहते हैं जौफ। वहाँ से 3 हुरूफ अदा होते हैं और ये मदूद वाले हैं, ठीक है। अलिफ मद, वाव मद, या मद, ठीक है। अलिफ, वाव और या। इसको अब आपने हमज़ा से, या अगर जैसे मद वाला नहीं है लेटर, वैसे जैसे वाव से वल अस्र शुरू हो रहा है, तो हर जगह पर इन अल्फाज से मदूद नहीं बनानी। जहाँ मदूद बन रही होंगी सिर्फ वहीं पे मदूद बनाएंगे। और इसका जो मखरज है ना, जैसे जो मद वाला वो अलग है। वैसे आप देखिएगा, या आपको नज़र आ रहा है अलिसान में, वाव नज़र आ रहा है शफतान में, ठीक है। और अलिफ इसलिए नहीं नज़र आता क्योंकि अलिफ जो है कंडीशनल है। अगर तो अलिफ से पीछे कोई बारीक लेटर है तो मद बनाते हुए हम उसे हल्का पढ़ते हैं ना, पतला पढ़ते हैं। और अगर आपको इससे पीछे जैसे दौद नज़र आ जाए, गौइन नज़र आ जाए, तो हम इसे मोटा करके पढ़ते हैं। और जो अल हलक में है वो हमज़ा है, ठीक है। अल हलक में हमारे पास 6 हुरूफ हैं। यहाँ पर हमने ये भी सीख लिया कि इनका जो मखरज आम है अल हलक है, ठीक है। और मखरज खासा, यानी कि जैसे सिस्टर अफ़सा आपको बताती होती हैं कि अगर आप लाहौर में रहते हैं उसके बाद भी तो फिर आगे आपने अपना कुछ पता बताना है ना, तो वो जो एड्रेस आप बताते हैं वो आपका ख़ास एड्रेस होता है ना। तो ये जो मखरज खासा है, इसमें फिर आगे हम 3 कैटेगरीज में इनको देखते हैं। हम देखते हैं ये अक्सा है, ये वसत है और ये इसका अदना है, ठीक है। वो हमें अल्हम्दुलिल्लाह से याद भी होते हैं अल हलक के। उस पे ज़्यादा नहीं हमें करना पड़ता क्योंकि हमज़ा, हा, आइन, हा, गैन, क़ा ये अक्सर लोगों को याद होते हैं। हमारे पास थोड़े से जो ज़्यादा हैं अल लिसान के हैं, जो चल रहा है। इसमें हमने आज इंशाअल्लाह ता, दाल और तौ करना है, ठीक है। काफ़ी सारे हमने कर लिए, अब थोड़ा-सा रह गया ज़ुबान का जो मखारिज वाला हिस्सा है, बस वो अब इंशाल्लाह कंप्लीट होने वाला है। इसके बाद हम करेंगे अशफ़तान। हमने अभी मखारिज इसके वैसे बाकायदा तौर पर तो सीखने हैं, लेकिन माँ बा वफ़ा होती है। एक छोटी सी फ्रेज़ से हमने सीखा कि म, ब, व और फ़, ये 4 लेटर ये होंठों से अदा होते हैं। बाकी किसी भी लेटर के लिए ना तो आपके होंठ आगे आने चाहिए, ना फैलने चाहिए, ठीक है। तो इन चीज़ों का ख़्याल रखेंगे, तिलावत बहुत खूबसूरत होती जाएगी। अच्छा जी, इन पे हमने बात कर ली। अच्छा, अब हम ये देख रहे हैं कि अल लिसान का जो है, इसके 10 मखारिज में 18 हुरूफ हैं। इन सब जितने भी 18 हुरूफ हैं, इनके लिए जो मखरज आम है वो है अल लिसान। आपसे पूछा जाए कि क़ाफ का मखरज क्या है, तो आप कहेंगे कि जो मखरज आम है। अच्छा, मैं देखो मेरा पेन चल रहा है कहीं, इसको दोबारा कनेक्ट कर लेते हैं। अच्छा जी, चलिए चल पड़ा। इसका मखरज आम कौन बताना चाहेगा? अगर इसको बताना पड़े मखरज आम है तो क्या है इसका मखरज आम? लिसान। अल लिसान, अल्हम्दुलिल्लाह, लिसान। ठीक हो गया। अब एक मैंने एक खास लफ्ज पूछ लिया, जैसे मैंने पूछ लिया कौफ पूछा था ना, तो मखरज आम तो अल लिसान ही रहेगा क्योंकि जुबान से हमने अदा करना है। फिर हम बताएंगे इसका मखरज खास, ठीक है, इसे हम अक्सर लिसान। खासा भी कह देते हैं, ठीक। हाफतुल लिसान। अक्सर। ओ सॉरी, नहीं, अक्सर अक्सर लिसान। लिसान। अक्सर अक्सर, अक्सर लिसान। लिसान, अक्सर लिसान। जिन सिस्टर ने हाफातुल लिसान कहा था, सॉरी। हाँ, वो उसके लिए याद रख लें कि हाफा में सिर्फ एक दौद है, ठीक है, बहुत, सिर्फ जी एक जी, दौद बहुत, है, सिर्फ, हाँ, वो जी एक जी, सिर्फ लेटर है, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी से हमने अक्सर लिसान कर लिया, हमने हाफा भी कर लिया, वसतुल लिसान भी कर लिया, हमने अदना हाफा भी कर लिया, हमने तरफुल लिसान भी तरफुल कंप्लीट कर लिसान, लिया। अब हमने करना है आज अपना जहर तरफुल लिसान, तरफुल ठीक है। लिसान। तो अब हमारे पास सिर्फ थोड़े से, और ये भी हमने कर लिया, ये हमने पहले ही कर लिया, रासुल लिसान, यानी कि हमने लास्ट क्लास में ज, सीन और सौद कर लिया। आज हम करेंगे ता, दाल और तो। इसके बाद सिर्फ हमारा सा, जाल और जौ रह जाएगा।
आपने क्या करना, करने वाले कामों में अल्हम्दुलिल्लाह से आप लोग ग्रुप में काम भेजते ना, खुशी होती है कि अल्हम्दुलिल्लाह से हमें समझ आना शुरू हो गई है। आपने इसी तरह से ज़ुबान बना लेनी है और जितने आपने कर लिए वो सारे लिख लेने, ठीक है? सिर्फ़ आपके पास 1 पॉइंट बच जाएगा, 9th वाला ये अभी करना है, बाकी हमारे सारे अल्हम्दुलिल्लाह से पूरे हो गए। ये वाली ड्राइंग बार-बार बनाएँ, साथ-साथ लिखते जाएँ, लेबल करते जाएँ, मखरज आपके इंशाअल्लाह पक्के हो जाएँगे, ठीक है? जैसे कॉफ का पूछा, फ़ौरन से हमें भी ऐसे होता है कि एक दफ़ा सोचना पड़ जाता है, क्योंकि इतने सारे हैं, ढेरों ढेर हैं, तो हमने पहले कभी इस तरह से सीखा भी नहीं था, बचपन में सीखे होते, तो जैसे हमें रवानी से अपनी सूरह फ़ातिहा याद है या हम नमाज़ बचपन में सीख लेते, सारी हमें ज़िक्र वग़ैरह याद होते, हो सकता है बचपन में सीखे थे, तो हमें ये नाम भी इस तरह से याद होते, अभी थोड़ा सोचना पड़ जाता है, तो कोई मसला नहीं है। आहिस्ता-आहिस्ता ही सही इंशाअल्लाह हम इनको बहुत अच्छा पक्का कर लेंगे। तो अक़सा उल लिसान नाम भी इंशाल्लाह। याद रख लेना, ठीक है? अक़सा जी। मस्जिद अक़सा से याद रखा करें, मस्जिद अक़सा हमसे दूर है, तो ये सबसे दूर है अक़सा उल लिसान, आखिरी हिस्सा जड़ जो ज़ुबान की। फिर उसके बाद वस्त हम उर्दू में भी कहते हैं, मुतवस्सित वग़ैरह दरमियान को कहते हैं, ठीक है? और जो ज़हर है ना ज़हर, ज़ुहर की नमाज़ से याद कर लें, ठीक है? वो दरमियानी सा हिस्सा होता है ना, वैसे पीठ को कहते हैं ना, क्योंकि ज़ुबान को थोड़ा-सा आप बिल्कुल जो बिल्कुल सामने वाला किनारा उससे थोड़ा पीछे जाए ना, तो वो ज़हर तरफ़ुल लिसान है और आज हमने ज़हर तरफ़ुल लिसान का ही सीखना है, ठीक है? और ये दाँत हैं, दाँतों के नाम किस-किस को याद हो गए? अल्हम्दुलिल्लाह याद है। अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि हमने कहा था सिर्फ़ एक साइड को याद कर लें, तो सिर्फ़ राइट को जी। याद कर लें, ऊपर वाला याद कर लें, उसमें आपको ये कि बाकी 3 अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत अच्छे से याद हो जाएँगे, ठीक है? क्यों ज़रूरत जी। पड़ती है? क्योंकि हमने अपने मखारिज जो हैं, ज़ुबान और दाँतों से इसी तरह सीखने हैं ना, क्योंकि दाँत हमारे मुँह में ही रहने हैं ना। और जब दाँत आप देखिए नहीं रहते ना मुँह में दाँत जब ज़ईफ़ हो जाते हैं, हम लोग बुढ़ापे में चले जाते हैं तो जो बात समझनी थोड़ी-सी मुश्किल हो जाती है ना, तो दाँतों का बड़ा अहम रोल है बोलने में, मखरज को अदा करने में। अच्छा जी, अल-लिसान में आपने देखना हाँ, आज जो देखना है वो है मखरज ख़ासा किन 3 हुरूफ का? ता, दाल और तौ, ठीक है? दाल और ता ये हमने थोड़ा-सा अपने क्यूसी में भी सीखा हुआ है ना, जहाँ हम पढ़ते थे अबत्ता, हम पढ़ते थे ना, हम कहते थे ये करीबुल मखारिज हैं, दाल और ता एक साथ हो गए, अब पढ़ना मुश्किल है ना, अबद ता ऐसे नहीं पढ़ना। फिर कैसे इस बा को हमने डायरेक्ट ता से मिला लिया था, लिखने में ये ऐसे हो जाता है। सॉरी जी, ठीक है? ल देखने में लिखने में ये ऐसा ही रहेगा लेकिन पढ़ने में ये अबत्ता हो जाता था। क्यों हम कहते थे करीबुल मखारिज हैं, एक ही इनका मखरज है ना, एक ही जगह से अदा होते हैं। अब हमने बस ये गौर करना ये वाली जो हमारी जगह है ना ज़ुबान की, इसको हम कहते हैं ज़हर तरफ़ुल लिसान, ठीक है? अब ये सनाया उलिया ही इसमें काम आना है हमारे पास, ठीक है? अब ये जो सामने वाले दाँत हैं ना, इनमें हमने ज़ुबान की जो जड़ सॉरी जड़ कह रही हूँ, ये जो पीठ जिसको कह लें या ज़हर कह लें, इसे लगाना है। इस तरह से हम अदा करेंगे ता, दाल और तौ। अब इसका जो आपने लिखना है अपने पास वो मैं आपको पूरा-पूरा बताती भी लिखें। ज़हर तरफ़ुल लिसान जब सनाया उलिया के जुज़ूर यानी कि जड़ों को तो ये खाँसी जुज़ूर को लगे। अब ये तो जुज़ूर कहाँ पे है? अपनी ज़रा ज़ुबान से टच करें जो ऊपर थोड़ी-सी ऐसी चटाई जैसी जगह बनी हुई है ना, उसे कहते हैं नक़िया। ना तो हाँ जी, यही हाँ जी, ठीक है, आपको मैं इसको लिख के भी बताती। नतइया। अन-नक़िया, इसमें आइन भी आ जाता है, सॉरी। नतइया। ये क्यों कहते हैं? क्योंकि ना जो होती थी ना खुरदुरी। जानवरों की खाल वगैरह वो बिछा के अरब लोग जो थे ना दस्तरखान बनाते थे, तो वो ऐसे खुरदरी सी होती थी ना जैसे ये हमारी ऊपर वाला जो हमारा हिस्सा है जबड़े का, वो उसमें ये ना थोड़ा-सा ऐसे हमें जुज़ूर सा नज़र आता है, थोड़ा बना के भी इन्होंने दिखाया हुआ है। यहाँ आप इस वाले पे थोड़ा-सा गौर करें।
इसी तरह से हमारे होते हैं ना, और कभी कभी जब ये हमारे गम्स वगैरह ये फूल जाते हैं तो ये वाले हिस्से भी साथ नुमाया से ऊपर उठे हुए में महसूस होते हैं। बस यहीं पर हमारी जुबान की जो जहर है वो लगेगी और हमारे हुरूफ अदा हो जाएंगे। तो थोड़ी सी कोशिश पहले करनी पड़ेगी, फिर इंशाल्लाह आदत पड़ जाएगी, ठीक है। जहर तरफुल लिसान जब सनाया उलिया। अब हमें दांतों के नाम याद होंगे तो पता चलेगा कि सनाया उलिया किसे कहते हैं, सामने वाले ऊपर दांत। वाले खुदा बिल्कुल। इनकी नायाउली। जजूर को, ठीक है, जजर, जुजूर, ठीक है, जुजूर यानी जड़ों को लगे। ओहो, ये किसको नींद आ गई, मुझे लग रहा है। चलें जी, इनको जरा हम म्यूट कर देते हैं। चलें जी, ठीक है। अच्छा, अभी इसका हमने कैसे सीखना है, याद रखना है, वो लाइन में आपको दोबारा रिपीट करती हूँ। जहर तल्फुल लिसान जब सनाया उलिया की जड़ों को लगे यानी जुजूर को लगे तो 3 हुरूफ अदा होते हैं, ता, दाल और तो। नतिया, अच्छा, इसका वो गैर हमवार हिस्सा जो लिस्सा में, लिस्सा के ऊपर होता है ना, लिस्सा हमने किसे कहा था, ये बिल्कुल जो दांतों के मसूड़े। साथ वाला, मसूड़े, हाँ जी, बिल्कुल जो दांतों के साथ जुड़े हुए थे ना, या जिसमें हमारे दांत फिक्स हुए हुए थे। अब इसके बहुत करीब लगती है जुबान, इसलिए इसको नतिया कहते हैं। अच्छा, इसको ना एक इन्होंने थोड़ा सा हमें इस तरह से बताया था कि जब सुफरा नहीं होता था, यानी कि दस्तरख्वान नहीं होते थे ना, तो जानवरों की खाल वगैरह बिछा ली जाती थी। तो इसीलिए उसी से फिर उसको उसको कहते थे नतआ, फिर उसी से मिल गया ये नतोया। और इसको जब हम देखते हैं ना कि इनके लकब वगैरह, तो हम कहते हैं कि इसमें ता है, ठीक है, हम कहते हैं इसमें भी तो है, इस नाम में भी तो है, ठीक है। ये जब हम इंशाल्लाह अपना सा, जाल और जो करेंगे तो वहां हम इसे लिस्विया कहेंगे। तो हम देखते हैं, हमने छोटी छोटी निशानियां बनाई थी कि इसमें भी सा है, इसमें भी सा है। इससे क्या होता है, हमें अपने मखारिज के लकब वगैरह या इनकी निस्बत याद करनी आसान हो जाती है। अच्छा जी, अब ये वाला जो मखरज है इसको हमने अदा कर करके देखना है। कैसे? हम ता से पहले हमजा लगा लें, हमजा के ऊपर फतहा लगा लें और हम अदा करें। और एक और चीज यहाँ पे हम गौर कर लेते हैं इस पर कि जब ता है और ता साकिन है, सिफात इंशाल्लाह हम पूरी पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना याद रख लें कि ये ऐसे अल्फाज है कुछ जैसे काफ और ता, इसमें जब आप साकिन करते तो एक वो और ये वाली आवाज आती है वापस। आप कारी का हम गौर से सुने ना, तो वो हमें वो आवाज एक लौटती हुई महसूस होती कि जो अत, अत, हम कहते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहात, ठीक है। इस पे रुक जाता है, ठीक है। अच्छा जी, अब इसी तरह से काफ पे भी होता है, वो हमने काफ के जब किया था, मखरज किया था, वहां यकीनन सीखा होगा। अब जब हमने दाल को ऐसे देखना है तो इसी तरह से आप हमजा लगा लें एक, दाल के साथ साकिन कर लें। अब कौन ये मखरज मुझे सुनाएगा? सर जी मैं सुनाऊं। नहीं जी। हमजा जबर दाल अद। अद, यानी कि आपने बहुत ऊपर प्यारा कलकला ख्याल होगा। रखा कलकला का भी, जी बिल्कुल कलकला। बिल्कुल। बिल्कुल, जी। हमने ये बातें भूलनी नहीं है, ठीक है। और इसी तरह से इंशाअल्लाह। कलकला हमारे तो में भी होना, इसको भी जरा पढ़े, हमजा लगाकर। हमजा हमजा जबर क़ा अक़। ऑतो। सिस्टर साहब कुछ ऐड करना चाह रही हैं? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम मैंने अस्सलाम। कहना था जबर कहने की आदत को थोड़ा सॉरी सा हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी। ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाता है, शुरू में बहुत होता है। ठीक है। अच्छा, अब ये सिस्टर शबाना थी ना, जी जी। इन पे हम, जालिम। हाँ जी, इन पे हमने ये जुल्म करना है। सिस्टर आपने ग्रुप में 5 दफा ये वाले सारे बोलने हैं, फतहा दोमा कसरा, ठीक है। ठीक है, आप जी। आप आप पे जुल्म होना शुरू हो गया है,
ٹھیک ہے اچھا یہ اللہ أكبر. چلے اچھا یہ مذاق تھا ویسے اگر آپ کر بھی لیں گی تو اچھا ہے منہ پہ ذرا چڑھ جاتے ہیں نا یہ والے فتحہ کسرہ ضمہ اب بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی QC کی کلاس میں نا اس وجہ سے بھی زیر زبر پیش کہتے تھے کہ بہت سارے لوگوں نے نہیں بھی تجوید کی کلاس لی ہوتی یا شروع کی ہوتی تو انہیں ذرا سیکھنا تھوڑا سا مشکل لگتا ہے نا یا سمجھ نہیں آتی تو وہاں پہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ چلے دونوں چیزیں ساتھ ساتھ بتا دیں تجوید میں ہم کوشش کریں گے کہ ہم جو عربی ٹرمز کے ساتھ سیکھ رہے ہیں اسی کے ساتھ پڑھیں میں نے غور نہیں کیا تھا سسٹر افسا تھینک یو آپ نے مجھے بتا دیا کیونکہ اکثر ہم نے جب یہ کیے ہیں نا لگاتے ہم یہ جو تا کو ساکن کر دیا حمزہ تو ہم اس کو صرف مخرج کو ادا کرتے ہیں اد آتو اچھا اب ایک اور چیز میں بھول گئی بتانا کہ تو اور تا میں فرق بھی رکھنا ہے تو ہمارا مفخم بھرا ہوا بھاری لیٹر ہے ٹھیک ہے اس کو ہم نے مفخم کرنا بھی ہے کلکلا بھی کرنا ہے اور اس کے ساتھ اس کو موٹا بھی پڑھنا ہے یہ نہ ہو کہ ہم ایک کلکلا کا خیال رکھتے ہوئے اسے باریک پڑھ جائیں اور ایسے لگے کہ جیسے ہم نے تا پر کلکلا کر دیا ہو تو تا اور تو اس میں اتنا فرق رہنا چاہیے کہ اگر کوئی آپ کی تلاوت سن رہا ہے وہ سامنے قرآن پاک نہیں پڑھا ٹیکسٹ نہیں دیکھ رہا پھر بھی اسے پتا چلے کہ آپ نے کہاں پر تا پڑھا ہے کہاں پر آپ نے تو پڑھا ہے ٹھیک ہے تو اس چیز کا خیال رکھنا جیسے ہم کہتے ہیں تو ٹھیک ہے یہ ہمارا دوبارہ سے بتا دیا کہ دال اور تا ٹھیک ہے کہاں پر ادا ہو رہا ہے یہ زبان کو زہر طرف اللسان لسا سے لگے دانتوں کے زہر طرف قریب ہوتی ہے ٹھیک ہے زہر طرف جی اللسان کیونکہ لسا سے نہیں لگنی نا وہ پھر ہمارا زال وہ سوری زال ہاں سا زال اور زوا کا مخرج ہو جائے گا زہر طرف اللسان سنایا ثنایا علیہ کی یا کے جڑ سے جڑوں سے بھی جڑوں سے لگے ٹھیک ہے اب یہ جڑوں مصنوعی بھی یہ تھوڑا سا پیچھے والا علاقہ ہے جڑوں سے سے جی لگے تو تو 3 حروف ادا ہوتے ہیں میں نے آپ کے لیے تا لکھ دیا ہے قا ٹھیک ہے گیا جی جی اچھا جی یہ تھوڑا سا بتا جی سعدیہ السلام علیکم جی اچھا وعلیکم مجھے السلام ایک چیز میں کنفیوژن ہے یہ جو طرف اللسان ہے دیکھنا کہ کمر کا پیچھے کا حصہ ہے تو یہ جو ہماری زبان کا اوپر حصہ ہوتا ہے یہ جو پوری اوپر زبان ہے اس کو کہتے ہیں طرف اللسان یا زبان کے نیچے والے حصے کو طرف اللسان کہیں گے وہ طرف اللسان تھوڑا اور آگے کا کنارہ ہے نا اسی کے تھوڑا سا پیچھے آ جائیں ٹھیک ہے یہ آپ سمجھیں کہ یہ زبان بنی ہوئی نا یہ والا جو ہے نا یہ طرف اللسان ہے یہ والا حصہ اس کے تھوڑا سا پیچھے والا زہر تھوڑا پیچھے ہوتا ہے نا ہوں آپ سمجھ لیں یہ فجر ہے اور یہ ظہر ہے ظہر کی نماز سے جی اس کو یاد کر لیں ٹھیک ہے اور یہ ایسے تھوڑی سی یہ آپ کو گول سی بنا کے بھی دکھائی ہوئی زبان تھوڑی سی ایسے گولائی میں آ بھی جاتی ہے ٹھیک ہے آپ ٹھیک ہے بالکل کنارہ لگائیں گے نا کنارہ لگانے سے پھر ہم وہ ادا کریں گے سا زال وہ ٹھیک ہے کیونکہ طرف ٹھیک ہے اللسان سے اور ہم نے بھی اور بھی سیکھے ہوئے نا تو زہر طرف اللسان یہاں پر بول کے اس کو اچھے سے یاد کریں اور میں نے وہ آپ کے ساتھ ایک شیئر کیا تھا نا ایک پیج پہ جہاں یہ ساری لکھے ہوئے انشاءاللہ ہمارا یہ والا جو ایک رہ گیا مخرج نیکسٹ کلاس کا وہ بھی کر لیں میں پورا پیج شیئر کروں گی آپ کے ساتھ وہ آپ ایسے کیجیے گا نا کہ اس کو بار بار دیکھیے گا بار بار اس کو یاد کیجیے گا پھر ہم آپ کے ساتھ ایک خالی پیج ویسا شیئر کر دیں گے جس پہ آپ خود لکھیں گے تو بار بار لکھنے سے بار بار خود ادا کرنے سے بولنے سے بہت اچھے سے یہ چیزیں یاد ہو جائیں گی پھر آپ اس پہ اپنے حساب سے نشانیاں لگا لیجیے گا کہ کہاں کہاں طرف اللسان ہے کہاں کہاں زہر طرف اللسان ہے ہمیں بھی ایک ٹائم لگا تھا یہ نہیں ہوا تھا کہ ہم نے ادھر سے سیکھا ادھر ہمیں سب کچھ یاد ہو گیا ٹائم لگتا ہے لیکن یہ کہ جمے رہیں ڈٹے رہیں انشاءاللہ یاد ہو جائے گا سب کچھ ٹھیک ہے اچھا جی توق میں جو بتائی گئی ہے نا بات دال اور تا میں زبان سیدھی ہے تو میں اٹھ جاتی ہے ٹھیک ہے پیچھے سے بھی اٹھے گی تاکہ پورا منہ بھر کے آپ تو ادا کریں تو تھوڑا سا بھاری بھی کریں تھوڑا نہیں بلکہ صحیح طرح بھاری کرنا ہے اور پتہ چلے کہ تو ادا ہوا ہے تا نہیں کہا
और देखें ये होंठ भी सीधे हैं, ठीक है, कोई गोल मोल नहीं किए हुए या फैलाए नहीं हुए, क्योंकि होंठों के लेटर नहीं है ना। तो अपने पास जरूर एक मिरर रखें। मिरर में देखा करें कि कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि मैं तो अदा कर मैंने गोल मोल कर लिया। खास तौर पे जब हम पढ़ते हैं आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, तो जब हम गोल करेंगे देखें आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतो, अब वो तो दूसरों को भी पता चलेगा कि मैंने गोल मोल से अपने होंठ करके या मैंने इसको मसनूई तरीके से भारी करने की कोशिश की है। अगर फिर भी होंठ जो है गोल हो रहे हैं, हमें ऐसे लग रहा है कि ये तो मेरा थोड़ा सा मुश्किल है, तो ऐसे पेंसिल रख लें या उंगली रख लें जब आप तो पर पहुंचे। और एक और चीज़ यहाँ पर ख़ास ख्याल रखना है कि उसको नून गुन्ना नहीं लगाना, ठीक है, ये तो नहीं है, ठीक है, ये वाला नून गुन्ना है ही नहीं है कुरान मजीद में। अच्छा जी, हमने ये किया था, जा तक किया था, कोई मुझे बताइए, हमने रॉ तक किया था, यहाँ तक हुआ था। जी जी रॉ लास्ट तक किया था। तक मैंने चले किया था, अल्हम्दुलिल्लाह, वहां तक हुआ था, ठीक वो है, मैंने पढ़ा था। अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए जी, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अद-दर्सुर राबि, अल हुरूफुल मुतहर्रिका, अल हरकात, फतहा, कसरा, दम्मा, ठीक है, इसको ज़म्मा भी नहीं कहना, दम्मा। पढ़ना कैसे है, हमने जो हर्फ अदा करना है, उसका पूरा हक अदा करना है, उसमें कमी नहीं करनी, ठीक है, उसमें चोरी नहीं है। जैसे तो को पूरा हम जैसे लेटर हमने पहली तख्ती में सीखे थे, ऐसे अदा करना है स्पेलिंग के साथ, ठीक है। इसके साथ साथ अपने कायदा पर आपने क्या करना है, साथ लिख लें, फतहा, कसरा, दम्मा, ठीक है। इसके बाद एक और जो चीज याद रखनी है, पहले ये दो अदा करने हैं, जब हम ये पढ़ लेंगे, फतहा की हरकत पढ़ेंगे, कसरा की मिला के पढ़ेंगे, उसके बाद फिर तीनों को मिला के भी पढ़ना है, ठीक है। जैसे तो फतहा तो कसरा तुई दम्मा तो जब कहना तो फिर उसको लंबा करना है, लेकिन जब हरकत के साथ पढ़ना तो बस इतना, ठीक है, तो तुई तू। और जब इकट्ठा पढ़ना पॉज नहीं देना, ठीक है, तो तुई तू। इसके बाद हम दाल, और यही मखरजी आज हमने पढ़ा है यहाँ तक, ठीक है। दाल फतहा, अब इसको दाल जल्दी से नहीं कह देना, दाल फतहा दाल कसरा दी, दाल दम्मा दीदू। साथ साथ लिख लें छोटा छोटा सा, फतहा, कसरा, दम्मा, ता फतहा ता कसरा तती, ता दम्मा तीतू। अच्छा जी, अब हैंड रेस कीजिएगा। अब आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है, हैंड रेस कर ले, मैं आप लोगों के नाम बताती हूँ, ठीक है। अच्छा जी, विशाल और सादिया, शबाना। अच्छा, मुझे सबको देखने दे जरा। अब जिस ऑर्डर में मैं नाम लूंगी आपने एक एक हर्फ के तीनों तीनों पढ़ने, ठीक है। सबसे पहले विशाल पढ़ लेंगी, फिर सिस्टर सादिया पढ़ लें, उसके बाद सिस्टर शबाना पढ़ेंगी, और एक और हैंड किसका, सिस्टर अतिया, ठीक है, आप चारों पढ़ लें। सिस्टर विशाल आपने सौद से शुरू करना है, ठीक है। ओके ठीक है। स्वाद स्वाद इसका इसका फतहा कलकला, स्वा, इसका कलकला भी निकालें दाल का। दाल से शुरू करना है। नहीं, ये आप स्वाद, यहाँ पे ओके इसका ओके कलकला भी करें। ओके ओके। स्वाद स्वाद फतहा स्वा, थोड़ा सा कोशिश करें, स्वाद 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 स्वाद, ठीक है। स्वाद फतहा स्वा, स्वाद कसरा स्वी,
स्वाद दम्मा सु स्वासी सु सीन नहीं नहीं, बस फतहा एक यानी कि आपने स्वाद पढ़ा ना, सीन हम ओके किसी और को पढ़ने देंगे। अभी आप मेरे साथ रहें सिस्टर विशाल। सही स्वाद में जी सीटी भी है, सीटी भी है, और इसको पुर भी करें, मुंह में हवा भर लें ढेर सारी। ठीक है। और यहाँ स्वाद पर स्वाद में ना थोड़ी सी मेहनत की जरूरत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने जब स्वाद कहना है, कलकला भी आना चाहिए, सीटी भी आनी चाहिए। ठीक है। और इसके बाद जब हमने फतहा और कसरा पढ़ना है, तो इन दोनों को इकट्ठा भी पढ़ना है। उसके बाद फिर हमने सही दोमा पे जाना है। सही दोबारा एक, स्वाद फिर से पढ़ लूं हाँ पढ़े पढ़े, बिल्कुल पढ़े। स्वाद फतहा स्वा स्वाद कसरा स्वी स्वासी जी स्वाद दम्मा सु स्वासी सु चलिए, अल्हम्दुलिल्लाह आपने दो में सौद याद रखा, यहाँ आप थोड़ा सा फिर भूल गई। अब आप इसको ना अपना होमवर्क ले लें कि आपने सौद का बार बार सुनना है। कारी का पहले सुनेंगे ना, फिर आप सही प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छी सी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है। इसको मुंह में ठीक हवा भरें, फिर वो बहुत अच्छा सा अदा हो जाएगा। ये प्रैक्टिस करके सौद की, फिर आप कोई सा एक पेज खोलें कुरान मजीद का, वहां पर जहां पर सौद नजर आए उसे हाईलाइट कर लें, या लेड पेंसिल से नीचे लाइनें लगाएं। उन अल्फाज को आप ज्यादा तवज्जो से पढ़ें। ठीक है। फिर ठीक इंशाल्लाह बहुत बेहतर हो जाएगा ये। ठीक ठीक है है। इंशाल्लाह चलें, अब अगली इंशाल्लाह सिस्टर आ जाए, जैसे मैंने नाम लिए थे उसी तरह से आ जाएं। जी। सीन फतहा सा, सीन कस सीन कसरा सी, सासी, सीन दोम्मा सू, सासी सू। अल्हम्दुलिल्लाह। अब नेक्स्ट कौन सी सिस्टर है? जा फतहा जा, जा कसरा जी, जाजी, जा दम्मा जू, जाजीजू। अल्हम्दुलिल्लाह। अब ज़ो कौन पढ़ेगा? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम ज़ुआ फता ज़ुआ ज़ुआ कसराजी ज़ुआ ज़ुआजी ज़ुआ दुआमाजू ज़ुआजीजू। सिस्टर आप थोड़ा सा आपने जल्दी किया। ठीक है। जल्दी नहीं करनी। ठीक है। फिर ये बहुत प्यारे प्यारे अदा होते हैं। जो जो इसको पुर भी पढ़ना है। अच्छा, ये हमने अभी चले इसको तो अभी हमने करना है ना, जो का भी ये मखरज नहीं पड़ा। सौद सीन और ज, इसकी जो स्पेशल क्वालिटी वो क्या है, कौन मुझे बताएगा? मैं बताऊं? जी। ये सीटी वाले आवाज देते सफीर हैं। सीटी सफीर वाले, बिल्कुल। सफीर सफीर। सीटी सफीरिया भी कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। इसमें मोटी सीटी है। ठीक है। इसमें स्वाद में पतली है, इसमें भी पतली सीटी है। और जा ये में तीनों बजिंग मतलब साउंड। सफीर तीनों वर्ड जो हैं वो सीटी वाले हैं। ये सीटी वाले हैं। इनमें सीटी नुमाया हमें आ जाती, पता चलता है। इसमें थोड़ा सा ये कि जो वो बजरिंग साउंड होता है बजर, ना, वो आ जाता है। ठीक है। हमें खुद जैसे मक्खियां बिन बनाती ना, बज, बज, शहद की मक्खी अक्सर बनाई भी होती है ज के साथ, तो वो बजरिंग साउंड सा आ जाता है। ठीक है। अच्छा जी, अब सिस्टर शफक आप जाल से शुरू कर लें। और अगर मैम जा से ना जी, जाल से, जा फतहा जा जाल से मैंने जा, कहा था सिस्टर, जाल। जाल ओके मैम जाल फतहा जा जाल कसरा जी जाल दम्माजू जाजीजू अल्हम्दुलिल्लाह। पहले इन दोनों को इकट्ठा पढ़ा करें। ठीक है। पहले इन दोनों ओके को इकट्ठा पढ़ा करें, फिर बाद में दो माँ वाला शामिल किया करें। एक बार फिर पढ़ लें इसको। जाल फतहा जा जाल कसरा जी जाजी जाल दम्माजू जाजीजू अल्हम्दुलिल्लाह। सिस्टर सदफ आप पढ़ लें सा से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सा फतहा सा सा कसरा सी सासी सासी सा दम्मा सू सासीसू। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, अब रह गए हैं, अब ये कौन से हैं? ये होंठों वाले। ठीक है। अब आपके होंठों से अदा होने, फा कैसे अदा होगा?
ऊपर वाले जो दांत है ना वो नीचे वाले होंठ का गोलाई वाला हिस्सा, इसे लगाएं और एक ऐसी फूंक जैसी आवाज भी आएगी, तो फिर ये फ अदा हो जाएगा। कौन कोशिश करेगा? मैं करूँ? मैं करूँ? अच्छा, मैं का नाम भी बताया करें। शबाना। मैं शबाना, ठीक हो गया फ जी। फ फ फतहा फ फ कसरा फी फाफी फा ضمة फू फाफी फू। अल्हम्दुलिल्लाह। अब वाओ कोई और सिस्टर पढ़े। यहाँ पे राउंडिंग का ख्याल रखना है, ठीक है। वाओ चाहे फतहा, दम्मा, कसरा, साकिन किसी तरह से भी आए, आपने इस पे राउंडिंग का ख्याल रखना। पढ़े जी जी, जिसने कहा था वो पढ़े। वाव फतहा वा, वाव कसरा वी, होंठों को और वाव गोल करें। ओके, वाव फतहा वा, वाव कसरा वी, वावी, वाव दम्मा वू, वावी वू। अल्हम्दुलिल्लाह। सिस्टर समिया, आप ये बा का शुरू करें पढ़ना। बा फतहा बा, बा कसरा बी, बाबी, बा दम्मा बू, बाबीबू। मीम का भी पढ़ लें। मीम फतहा मा, मीम कसरा मी, मामी, मीम दम्मा मू, मामीमू। अल्हम्दुलिल्लाह, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, बेहतरीन हो गया। अब क्या करना है, प्रैक्टिस आपने कैसे करनी, आपके साथ एक प्लेलिस्ट शेयर अगर नहीं की तो कर देंगे। अगर इसी लेसन का सिस्टर अफ़सा ने शेयर किया हुआ है तो उसे बार-बार सुनें। बार-बार सुनने से क्या होता है, जब हमारे कानों में आवाज़ पड़ती है हमें आदत हो जाती है। जैसे मैं अब आपको बताऊँ, कोई हम अपने घर में नहीं भी गाने-शाने लगाते सुनते, तो बाहर आप कहीं भी जाएँ, कोई कहीं पे बार-बार, बार-बार कोई चीज़ बजती है ना, वो आपके कानों को आदत हो जाती है सुनने की, आपको वो लिरिक्स याद होना शुरू हो जाते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि बार-बार सुनें, कारी का सुनें, कान जो सुनते हैं ना, फिर वो खुद ब खुद ज़ुबान से अदा होता है। आप इसको जैसे बहुत सारे ऐड होते हैं, हम कोई बाकायदा बैठ के उनको देख नहीं रहे होते, लेकिन वो जब चल रहा होता है ना, तो वो हमारे साथ-साथ सारे मुँह में आ रहे होते हैं कि अच्छा अब ये बोल रहा है, ये बोल रहा है, ये बोल रहा है, ये बोल, तो वो सारा याद होने लग जाता है खुद ब खुद। तो अगर हम अपने कानों को बार-बार सुनवाएँगे कारी की आवाज़ में, तो बहुत अच्छा-सा कायदा हो जाएगा। कायदा अच्छा हो जाएगा, तो ये सारे के सारे कुरान के हरूफ हैं, और एक-एक हर्फ के बदले 10-10 नेकियाँ, इस नीयत से, इस सोच से पढ़ा करें। और जब हम कायदा पढ़ रहे होते हैं ना, खुद को बिल्कुल आप बच्चे समझा करें कि जैसे बच्चे क्लास में सीख रहे होते हैं ना, वैसे सीखा करें, उस शौक से पढ़ा करें। पढ़ने का मज़ा भी आएगा, सुनने का मज़ा भी आएगा, बोर भी नहीं होंगे। ठीक है? अच्छा जी, अब यहाँ पर हम अपनी इंशाल्लाह। सूरत भी पढ़ लेते हैं। अच्छा जी, हम सूरत पढ़ते हैं। आज कौन बताएगा आज हमारी कौन-सी सूरत है? मैंने अभी आगे आपको स्लाइड दिखाई नहीं है। सूरह अल कौसर से पीछे कौन-सी सूरत है? सर जी सूरतुल काफिरून। हो गई, सूरतुल काफ़िरून हो गई। सूरतुल माऊन। माऊन, माँ। बिल्कुल, बिल्कुल। जो आखिरी 10 है ना, उनका तो ऑर्डर भी याद कर लें। इसका फ़ायदा क्या हो जाएगा? जैसे सूरतुल ज़ोहर की नमाज़ होती है ना, उसमें ये सारी 10 की 10 सूरतें हम पढ़ भी सकते हैं। वो जो एक थोड़ा-सा डाउट आ जाता है ना कि मैंने 2 रकत पढ़ी है या 3 पढ़ी हैं, जब आप सूरतें बदल-बदल के पढ़ते हैं ना, वो भी फ़ायदा हो जाता है। तो जैसे सूरतुल फ़ील से यहाँ से आप याद करना शुरू करें कि मैंने 10 नाम याद करने, फ़ील, कुरैश, माऊन, कौसर, काफ़िरून, नस्र, इसके बाद लहब, और इसके बाद फिर 3 जो हमारी अल्हम्दुलिल्लाह से याद होती हैं, सूरह इख़लास, सूरह फलक और सूरह नास। ये सीधे और उल्टे दोनों तरफ से याद कर लें। नास से फ़ील तक, फ़ील से नास तक। यहाँ से प्रैक्टिस शुरू करें। इंशाल्लाह हम जैसे-जैसे पीछे जाते जाएँगे, हम अपनी सूरतों के नाम भी याद करते जाएँगे। ठीक है क्या जी? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। एक दिन एक सिस्टर ने मुझे यहाँ पूछा था
कि हम इसे क्यों लंबा करते हैं। उस दिन से मैं जब खुद पढ़ती हूँ ना बिस्मिल्लाह, तो मुझे यहाँ पर बाकायदा याद आता है कि मैंने यहाँ पर 2 काउंट देने, ठीक है? तो हमें आदत पड़ गई है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तेज़ी से पढ़ने की। तो जब हम तजवीद सीख लेते हैं तो हम क्या करते हैं, हम ठहर-ठहर कर पढ़ते हैं, हम हक़ अदा करते हैं हुरूफ़ का। तो जल्दी नहीं करनी, गौर करना है। वैसे भी एक बुकमार्क बना लें, उस पे आप ये सारा लिख लें, कहाँ राउंडिंग है, कहाँ मद बन रही है, बी को कैसे बारीक पढ़ना है। बिल्लाहि में जो लाम है उसको पतला पढ़ना है, बिस्मिल्लाह में जो लाम है इसको पतला पढ़ना है, ठीक है? इस्म जलाला का लाम सिर्फ़ मोटा और पतला पढ़ा जाता है, बाकी कुरान में जितना लाम है वो आपने पतला ही पढ़ना है, ठीक हो गया? इन छोटी-छोटी चीज़ों का ख़्याल रखेंगे ना, तो आगे जो हम सूरतें पढ़ते हैं वो बहुत अच्छी-सी पढ़ी जाएँगी। पहले से रेडी हो जाएँ, आप लोगों से मैंने एनालाइज़ करवाना है, ठीक है? जो कोशिश करना चाहता है वो हैंड रेज़ करे। पहली आयत मैं पढ़ती हूँ, पहली आयत को मैं आपको एनालाइज़ करके बताती हूँ, फिर आपने दूसरी आयत से शुरू करना है, ठीक है? सिस्टर अतिया ने सबसे पहले हैंड रेज़ कर लिया। अल्हम्दुलिल्लाह जी, सिस्टर सादिया आ गई हैं। एक और सिस्टर आ जाएँ, चौथी आयत तक फिर मुझे बताओगा कि इतने लोगों ने करना है, फिर उसके बाद दोबारा से हैंड रेज़ करवा लेंगे आपसे सिस्टर नसरिया, ठीक है? अब आप तीनों जिस ऑर्डर से मैंने आपके नाम लिए थे उसी तरह से आप अपनी एक-एक आयत को देख लीजिएगा, ठीक है? इसका मतलब ये भी नहीं कि आप उसकी उस ध्यान में लग जाएँ, आप मेरा ना सुनें, पहले सुनें, अच्छा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। أرأيت الذي يكذب بالدين युकज़्ज़िबु, ठीक है? ये ना हो के जो ज़ाल है इसको हम तेज़ी से बिद्दीन थोड़ा-सा पॉज़ दें, 2 दफ़ा खुद ब खुद अदा हो जाएगा। यानी कि ये मेहनत ना भी करें, थोड़ा-सा पॉज़ दे दें। जो तशदीद वाले हैं, 2 बार अदा करने हैं। हम से शुरू करते हैं। अच्छा जी, हम्ज़ा, हम्ज़ा कहाँ से अदा होता है? अगर मैं पूछूँ कि हम्ज़ा का मख़रज क्या है? अक्सा उल हक हल्क अक्सा से, उल हलक, हाँ अक्सा जी, उल हलक, जो सीने की मख़रज तरफ है। मखरज आम अल हलक और और मखरज खास अक्सा उल हलक। अक्साल हलक। अल्हम्दुलिल्लाह, एक्सीलेंट, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, अब रॉ हम कहते हैं कंडीशनल है, फतहा और दम्मा के साथ हो तो कैसी पढ़नी चाहिए? मुफख्खम मुफख्खम, मुफख्खम। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, इसके बाद हमें नज़र आ रहा है हमज़ा फतहा के साथ और इसके बाद या नज़र आ रही है। तो फतहा और या नज़र आए, फतहा और वाव नज़र आए, तो हम इसके बारे में इंशाल्लाह मुदूद में भी सीखेंगे, लेकिन इसको नरमी से अदा करते हैं, लीन लेटर कहते हैं, ठीक है? और ये हमने पूरी तख्ती भी करनी है, ठीक है? तो उसमें हम इंशाल्लाह मज़ीद देखेंगे इसको कैसे पढ़ना, ठीक है? इसकी पूरी तख्ती हम करेंगे, बई, तई और इसको हम कैसे दुबई से याद रख लेंगे, ठीक है? ऐसे ही फिर वो हाँ जी, दुबई जैसे कहते हैं ना वैसे ताकि हम इसको फ़र्क कर सकें, जो हमारी मदूद वाले लेटर होते हैं उनसे थोड़ा-सा फ़र्क हो जाता है। अब यहाँ पर अराअयतल्लज़ी ता तक देखें सब आपने एक-एक हरकत पढ़नी है, रॉ को पुर पढ़ना है, हमज़ा पतला है, ठीक है? दोबारा फिर हमज़ा है, ठीक है? इसको भी बारीक पढ़ना है, ता भी बारीक है। अब ता को हमने मिला देना है अल्लाज़ी के लाम से, लाम 2 बार अदा करना है। यहाँ मुझे बताएँ कौन-सा कायदा हो रहा है? हमें कसरा भी नज़र आ गई, या भी नज़र आ गया, तो अब यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए? मद याटू असली है। मद मद है, असली, मद 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 असली असली, उसमें काउंट करेंगे, और इसको कितने काउंट देंगे हम? 2 काउंट काउंट्स। 2 काउंट्स। 2 काउंट्स, काउंट ठीक है? अब जब फतहा के साथ या है तो लीन है, ठीक लीन है? है ठीक है? अब जी। कसरा के साथ इनकी दोस्ती है, ठीक है? इनकी दुश्मनी नहीं है लेकिन इनकी दोस्ती है, ठीक है? तो दोस्ती जो है ये क्या करती है थोड़ा-सा खींच देती है ना, तो 2 काउंट देने हैं। आप रुकें चाहे ना रुकें, यानी कि हम कहते हैं चाहे आप वसल करें, चाहे आप यहाँ पर इसको वक़्फ़ करें, दोनों सूरतों में हमने इसको 2 काउंट देने हैं। इसके बाद हमें या नज़र आ गया, दुम्मा के साथ राउंडिंग कर लें।
काफ पर आते ही अनराउंडिंग होनी चाहिए। ये ना यू को वो गोलमोल सा अदा हो जाएगा। ठीक है, तो आपने अनराउंड करना, होंठों को बिल्कुल सीधा कर लें, जुबान को भी सीधा कर लें, क्योंकि काफ बारीक पढ़ना है हमने। इसके बाद जाल है, जाल को भी हमने 2 बार अदा करना है। अच्छा जी, मखरज भी हम इसका सीखेंगे, लेकिन अभी के लिए टिप क्या ले लेते हैं हम, बिल्कुल दाल जो को तरफुल नरमी से लिसान बिल्कुल पढ़ेंगे। किनारा है ना, उसको थोड़ा सा दांतों से बाहर ले आए। युकज़िबु, इसका एक और फायदा भी होता है, ये ज उसकी सीटी नहीं आने देता और उस ज़ो जैसा नहीं लगता। ठीक है, युकज़िबु, सॉफ्ट ठीक हो गया। अब बा को हमने फिर से राउंडिंग के साथ, और बू भी नहीं करना, युकज़िबू भी नहीं करना। अगर हम इसको लंबा करेंगे ना, तो तो मद ये असली हो जाएगी। मद असली भी हो जाएगी, और फिर एक और भी चीज़ ना, तर्जुमे में भी फ़र्क पड़ जाएगा, क्योंकि वो फिर ज़्यादा लोगों की बात हो जाती है ना। वो जो दिमाग कम क्यूसी हो वाले, जाएगा। हाँ जी, बिल्कुल क्यूसी वाले तो समझ भी रहे होंगे कि मुदारे में जहाँ पर नून गिरा दिया जाए, कोई ना कोई पीछे अमल होता है, तो फिर वो जो बात वो जो है हो ना जाए जमा की हो जाती है। तो बिल्कुल। इन बातों का हमने ख़्याल रखना है। इसके बाद बात जो हमने कसरा के साथ, इसको हमने इसके साथ लिख लेना है बी। ठीक है, बी आई के साथ लिख लें चाहे ई के साथ लिख लें। बिद बिद दी, यानी कि यहाँ भी हमने इसको बारीक ही रखना है। ठीक है, यहाँ फिर हमें नज़र आ रही है वही दोस्ती जो हमें यहाँ नज़र आई। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक हमें मुतहर्रिक लेटर नज़र आ रहा है, जिसे हमने खुद साकिन करना है। क्या करना चाहिए? साकिन करना। मद आरिद लिस्सुकून 6 काउंट्स। 6 काउंट हो जाएगा। बढ़ेंगे। ठीक है, इसी तरह से आप भी अपने कुरान पर लिखा करें। ठीक है, फ़ायदा क्या हो जाता है, जब हम दोबारा पढ़ेंगे, फिर हमें ये सारी चीज़ें देख के याद आएगा कि कुछ ना कुछ हमने यहाँ पर पढ़ा था, कुछ ना कुछ हमने किया था। तो बहुत फ़ायदा हो जाता है, अपना लिखा हुआ दोबारा देखेंगे, दोबारा पढ़ेंगे। अपने पास आप और क्या कर सकते हैं, ये आयत आप किसी कागज़ पे लिख लें, सबसे ऊपर आयत लिखें। इसके बाद आपने ये जो सारे मखरज कर लिए, इसमें से ज़ाल का रह गया है ना, इंशाल्लाह वो भी कर लेंगे। बा का रह गया, जो रह गए उनको अभी स्किप कर लें। जितने मखारिज आपने कर लिए हैं, उनको साथ-साथ लिख लें, छोटा-छोटा सा लिख लें कि इसका जो सिर्फ़ ख़ास-ख़ास मखरज लिख लें। इसका फ़ायदा ये हो जाएगा, मखारिज जो है ना याद आना शुरू हो जाएँगे, कि जब आपसे अचानक पूछ लिया जाए इसका मखरज क्या है, इसका मखरज क्या है, तो फ़ौरन याद आना शुरू हो जाते हैं। और फिर जब हम अप्लाई करते हैं, तो अप्लाई करते हुए ये हो जाता है कि वो जब बार-बार लिखा हुआ बार-बार पढ़ा होता है ना, अप्लाई करना भी आसान हो जाता है। अच्छा जी, अब मैंने जिस सिस्टर का नाम सबसे पहले लिया था, किसने हैंड रेज़ किया नहीं था मैम, सबसे पहले? मैं बात कर सकती हूँ, अभी मुझे मखरज नहीं आते, सॉरी। नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आपने फिर भी करना तो है ना। नाम बताइए अपना, सबसे पहले किसने हैंड रेज़ किया था? मैं अतिया। अतिया ने। सिस्टर नौरीन, एक चीज, उस वक्त से ना सिस्टर नसरिया ने हैंड रेज किया हुआ था, तो बाकी सब बोलने लग जाते हैं, तो जिनके हैंड रेज होते हैं उनकी बारी ही नहीं आ रही, तो अच्छा, आप मैं पहले मैं ऐसा हाँ, करें। हाँ मैं जी, आपको बताती हूँ, मैंने सिस्टर अतिया के बाद सिस्टर सादिया और उसके बाद सिस्टर नसरिया का नाम लिया था। ठीक हो ठीक है, गया। मैंने कहा था जिस ऑर्डर से मैंने नाम लिए हैं, उसी तरह मैं सुन लूँगी। ठीक है, तो सिस्टर नसरिया आपने चले नहीं जाना। ठीक है, आपने नाराज़ होके नहीं चले जाना कि मुझसे सुना नहीं, मेरी नहीं, बारी वो नहीं आई। पढ़ ले मुझे, हुँ, सॉरी मैम, मैं वो नहीं खारिज नहीं नहीं कर। नहीं, कोई मैं बात नहीं। क्यों चली जाऊँ, मुझे तो दूसरे सुनाए तो मेरी आसानी हो जाती है। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, आप अच्छा, कर लें जैसे पहले। अच्छा सिस्टर अतिया कह रही है मुझे मखरज नहीं आती, ठीक है? मैंने ना ग्रुप में वो आपके साथ एक शेयर किया था पेज, जी जी, वो तो वो अपने जी। पास खोल लें, कोई बात नहीं, नहीं आता तो हमने सीखना ही तो है। ये आपका कोई टेस्ट नहीं हो रहा, हम सीख रहे हैं कि हम कैसे इसको पढ़ा करेंगे, ठीक है? किसी ने भी जी परेशान नहीं होना। आप बिल्कुल इस वज़ह से ना, मतलब कि हैंड रेज़ करने से या पढ़ने से रह जाया करें कि मुझे आता नहीं है, नहीं आता तो हम बैठे हैं ना, तो इंशाल्लाह हम सीख लेंगे, ठीक है? बिस्मिल्लाह। फ़ज़ालिकल्लज़ी यदुउल यतीम, इस आइन को हमने बहुत प्यारा सा अदा करना है, ठीक है? फ़, अब आप मुझे बताएँ सिस्टर अतिया, यहाँ पर हमें 1 हरकत करनी है, 2 करनी है, 3, 4 बताएँ ज़रा इसके बारे में?
फज़ाली का 2 काउंट्स आ जाएंगे। अच्छा पहले फा का बताइए। अच्छा, पा पे तो हम एक ही करेंगे ना, एक हरकत, ठीक है। कसरा पे। हाँ जी। अब ये देखें, फतहा और अलिफ सगीरा, ठीक है। अलिफ सगीरा बिल्कुल मद असली के कायम मुकाम है। तो आपने मुझे बताया कि यहाँ पर कितने काउंट होंगे? एक काउंट, 2 काउंट, एक ठीक है। पे टू 2 काउंट्स जी 2 जी काउंट। जैसे हमने वो अदा करना है ना अलिफ मद वाला, अब आप इसको जी। देखें, ये ऐसे भी लिखा हो ना तो एक जैसा ही होगा। यहाँ पे लिखती हूँ, अब ये इस तरह से लिखा जाए या अलिफ सगीरा के साथ लिखा जाए, दोनों में हमने 2 काउंट ही देने हैं, ठीक है। ये हम खोल के इसलिए लिख लेते हैं ताकि आपको मजीद आसानी से समझ आए। अच्छा जी, लाम को कैसे पढ़ेंगे? मुफख्खम पढ़ेंगे या मुरक्कक पढ़ेंगे? मुरक्कक पढ़ेंगे। मुरक्कक अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि सिर्फ सिर्फ अल्लाह इसम जलाला का जो लाम है उसे हम मोटा और पतला करते हैं, ठीक है। और इस काफ को पतला या मोटा, मुरक्कक या मुफख्खम? आपने अपना मखरज वाला पेज मुरक्कक खोला है? आपने अपना पेज खोला मुरक्कक मखरज वाला? अपने आपके फोन में होगा, आप अपने उसमें देखें, ग्रुप में देखें, मैंने एक पेज आपके साथ शेयर किया था, उसमें आप मुझे देख के बताएं कि जो काफ का मखरज क्या है। मीडिया पे जाएं अक्सर जब सख्त तालू को लगे मुंह की जानिब। हाँ जी, तो काफ अदा हो जाता है। काफ और जी कौफ, इसका फर्क भी रखना है, ठीक है। यानी कि ये जी इसको हमने मुरक्कक पढ़ना है और अक्सा और लिसान से पढ़ना है। अच्छा जी, अब हमने इसको मिलाना भी है ना, लाम की तशदीद से मिलाना भी है, ठीक है। अब ये बिल्कुल अच्छा। जैसे अल्लाजी ये था, इसी तरह से आप क्या कहेंगे, यहाँ मैंने जो लिखा था वही यहाँ अप्लाई हो जाएगा। बताएं जरा इसको मैंने क्या कहा था? थोड़ा सा सोचें। हाँ, कसरा है और कसरा के बाद क्या है? या, ठीक है। अब ये क्या है, यहाँ पर हमने 2 काउंट देने। आप ना थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई, कंफ्यूज ना, बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं, ठीक है। थोड़ी सी मैं आपकी हेल्प कर रही हूँ साथ साथ। अच्छा जी, या फतहा के साथ है, दाल दोम्मा के साथ है, तो या पर भी एक हरकत है, दाल पर भी एक हरकत है। यहाँ एक और चीज का ख्याल रखना है, तो अम्मा देख के किस चीज का ख्याल रखेंगे? दाल की आवाज जो हम देंगे वो हम राउंडिंग। हाँ, राउंडिंग में देंगे। राउंडिंग में, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। अब हमने आइन को 2 बार अदा करना है, ठीक है। यदु, यदु। अब इसको ये भी नहीं करना कि यदु, ऐसे नहीं करना कि कलकला लगने लग जाए, थोड़ी चलती हुई आवाज। यदुल यतीम, ठीक है। अब एक ये जो दोमा वाला है, इस पे राउंडिंग, यानी कि यहाँ पर आइन पर राउंडिंग भी है, और जिसके ऊपर हरकत है, इस हरकत को हमने लाम से मिलाना है। अब क्या ख्याल रखना है कि यहाँ पर झटका ना आ जाए, ठीक है। अले नहीं करना, उल ऐसे नहीं करना, उल। अब ये जो हमने लाम का मखरज सीखा था ना, अब थोड़ा सा पॉज दे दें, मखरज पर थोड़ा सा रुक जाएं, फिर मखरज ना इसको झटका नहीं आता, फिर वो आराम से सुकून से अदा हो जाता है। यदुल यतीम, अब यतीम में क्या हो रहा है, यतीम, इसको साकिन करना है खुद से, पीछे हमें मद नजर आ रही है, क्या करना चाहिए? अब हमें कौन सी मद बनानी चाहिए यहाँ पे? मद आरिद लिस्सुकून मद आरिद लिस्सुकून, लिस्सुकून 6 काउंट 6 काउंट, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। तो किसी ने भी ना घबराना है, ना परेशान होना है। बोल के सीखेंगे ना, आप क्लास में बोलेंगे, बोल के सीखेंगे तो वो ज्यादा अच्छा याद रहेगा, ठीक है। तो बिल्कुल ना शर्माया करें, इसीलिए तो हम सिर्फ फीमेल्स की क्लास रखते हैं, ताकि हम सारे बहुत अच्छे से माहौल में आसानी से सीख लें, समझ लें, ठीक हो गया जी। अच्छा जी, इसके बाद मैं जाता नहीं, फिर मैं शरीक होती हूँ। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, वाला यहुद्दु अला तामिल मिस्कीन, यहुद्दु, कैसे? नवाला खा रहे हैं, अटक गया गले में, इस तरह से दौद को मुशद्दद,
ये थोड़ा सा इस पे मेहनत होगी, 2 बार 4 बार 6 बार इसको अदा करें, बार बार अदा करें, कारी का सुने, फिर ये मज़ीद आसानी से अदा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमने दौद को 2 बार भी पढ़ना है और हमने राउंडिंग भी इसकी करनी है। दौद ये मुफ़ख़म भी है, ठीक है? तो सारी चीज़ों का ख़्याल रखेंगे। अच्छा जी, सिस्टर सादिया आप आई हमारे साथ? जी सबसे पहले मुझे वाव के बारे में बताएं। जी, वाव पे फतहा है, इसको 1 काउंट तक खींचेंगे और वाव पे राउंडिंग होगी। अल्हम्दुलिल्लाह। लाम अलिफ ज़बर ला, यहाँ पे मद असली है, इसे 2 काउंट्स तक खींच के पढ़ेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। यहुद्दू, ह पर दम्मा है, इस पे राउंडिंग होगी। और दौद दौद जो है ये मोटा लेटर भी है, इसको मोटा भी पढ़ेंगे और इसके ऊपर राउंडिंग भी होगी और अल्हम्दुलिल्लाह। 2 मरतबा पढ़ा जाएगा ये। ठीक है। आला में आइन पे फतहा है, इसे 1 काउंट खींचेंगे। ला इस पे मद असली है, क्योंकि खड़ा ज़बर जो है मद असली की कायम मुकाम है। अच्छा, अब इसको खड़ा ज़बर नहीं कहा करेंगे, इसको हम अ, कहेंगे अलिफ अलिफ सगीरा, सगीरा। यस, अलिफ सगीरा अलिफ मद की कायम मुकाम है, ठीक है। ठीक है। मिल तो मोटा हर्फ है, मोटा पढ़ा जाएगा, इस पर फतहा है, इसे 1 काउंट खींचेंगे। आइन अलिफ ज़बर आइन फतहा, आइन पर अलिफ मद असली है ये, इसे 2 काउंट्स खींचेंगे। और मीम के नीचे कसरा है और लाम के साथ इसको मिला के पढ़ेंगे, लाम पे जज़म है, इसको सुकून है, इसको मिला के पढ़ेंगे। मिल मिस सीन जो है वो सीटी वाला हर्फ है, तो सीटी के साथ पढ़ा जाएगा। मिस्कीन या मद है, मद असली है, यहाँ पे मद असली के बाद नून जो है कसरा है इसके नीचे, तो इसको वक्फी सूरत में साकिन करेंगे, मद बनेगी मद आरिज लिस्सुकून। इसे 6 काउंट तक खींच के पढ़ेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, आपने बहुत प्यारा सा सारा हमें बता दिया कि किस किस तरह से पढ़ना है। अच्छा जी, ये जो है ना तो इसका हमने मखरज आज ही किया था, ठीक है? तो इसको हमने याद रखना है कि तो में और ता में फ़र्क रखना है। अच्छा सिस्टर, अगर आपको मखारिज याद हैं तो दौद का बताएंगे कि दौद ये कहाँ से अदा होता है? अगर नहीं याद तो मुझे देख के बताएं। जबान के जो मोटे किनारे हैं वो ऊपर वाले दांतों की अंदरूनी सतह से मजबूती से लगेंगे, तो दौद अदा होगा। ठीक है, हम कहेंगे ऊपर वाले जो 5 दाने हैं ना, 5 दाने कौन-कौन सी है वो? ऊपर वाली 5 दाढ़े दवाहिक, और ज़हन में नहीं आ रहा एक मिनट। तवाहिन, तवा तवाहिन और नवाजिज़। नवाजिज़, अल्हम्दुलिल्लाह। याद नहीं आ रहा था, थोड़ा-सा जब हमने इसको चले मैंने आपको बताया, अगला आपको खुद ही याद आ गया, ठीक है ना? तो कोई बात नहीं, भूलना है अभी ऐसे होगा, थोड़ा भूलेंगे, थोड़ा याद आएगा, थोड़ा याद रखेंगे, तो कोई बात नहीं, इसको हम ऐसे आहिस्ता-आहिस्ता, आहिस्ता-आहिस्ता इस तरह से लेके जाएँगे, सब कुछ आपको ज़ुबानी याद हो जाएगा, इंशाअल्लाह, ठीक है? बस आपने क्या करना, अपने होमवर्क्स किया करें। ये जो हमारे इंशाल्लाह पूरे हो जाने ना, तो मैंने आपको पहले भी बताया हम आपके साथ एक पेज शेयर करेंगे, उस पे आप लिखेंगे ना, प्रिंट करवा लीजिएगा। बहुत अच्छा रह जाता है कि आप उसे प्रिंट करवा लें, फिर उस पे लिखते जाएँ कि ये वाला मखरज यहाँ, ये वाला मखरज है। जितना लिखेंगे इंशाल्लाह ये याद हो जाएगा, फिर जब पढ़ेंगे तो साथ-साथ याद आता जाएगा, ठीक है? अब सिस्टर नसरिया आपकी बारी है, ठीक है? फ़वैलुल लिलमुसल्लीन आ जाए। जी मैम, फा फा जो है मैम, फा के ऊपर जो फतहा है, और वाव वाव जो है वाव के ऊपर भी फतहा है। वाव को तो राउंडिंग में पढ़ी जाती है और वो साकिन के साथ, या के साथ साकिन है, उसको मतलब उसके साथ जोड़ी जाती है। हाँ, और अब लाम के यहाँ पर ऊपर हम कहेंगे, यहाँ पर हम कहेंगे हम लीन के साथ यानी कि नरमी के साथ अदा, जैसे आई पढ़ा था ऐसे वही पढ़ेंगे, ठीक है? लाम के ऊपर कॉमा, मतलब पेश जो है वो डबल हाँ, आवाज देंगे। द्वम्मातैन कहते हैं इसको, पेश ना इसको द्वम्मातैन कहते थे, दो को क्या कहते हैं? द्वम्मातैन। मतैन करेंगे, तो मतैन को फिर लाम के नीचे जो है कसरा है, उसके साथ मतलब मद है ना, उसके जी साथ उसको
जोड़ जाती है, और दूसरा लाम है उसके साथ साकिन है ऊपर, साकिन साकिन कर ली जाती है, उसको 6 काउंट दी देखिए जाती है। कितने सारे तो लाम इकट्ठे हो गए। ठीक है, जी यहाँ पर ये तीन वो था, लाम, तीन दोम्मतइन के इसको साथ था। ये हाँ अब जी, दो ये हैं और एक ये भी लाम है, देखें लाम 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 लाम, कितने सारे लाम इकट्ठे हो गए। लिल मुसल्लीन, हाँ, अब आपने जो मुसम्मीन लिल किया ना, लिल नहीं करना, ठीक है। जी फवाइलुल, आराम से पढ़ेंगे ना, फिर झटका नहीं आएगा। ठीक है, सही है मैम। इसके ऊपर मीम के ऊपर दम्मा है, और उसको स्वाद जो है, स्वाद को हम पढ़ेंगे राउंड में, नहीं, स्वाद 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 को नहीं राउंडिंग करनी। ठीक है, खास ख्याल रखना है, मीम पे राउंडिंग है। ये जो मैंने लिखा था ना, ये मीम पे दोमा है ना, इस पे राउंडिंग है। स्वाद को अगर राउंडिंग से पढ़ेंगे ना तो वैसे हो जाएगा, सोल सोल ऐसे हो जाएगा। तो इस पे हमने होंठ ये सीधे रखने हैं। सीटी वाली है, ये सीटी वाला सीटी है और वाली है, मोटी सीटी होगी इसमें, ठीक है। वाला है। और स्वली लाम, इसमें फिर लाम है, लाम के नीचे कसरा है और शद भी है। स्वाद और लाम को एक दूसरे के साथ जोड़ना है, और लीन या और नून, उसको फिर 6 राउंड देना होता है, मुसल्लीन जो पढ़ा जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे अंदाज ये भी अंदाजा है कि आपसे अगर मैं कहूँ ना कि आप पश्तो में बोले तो आपने बड़ा रवानी से बोलना है। आपको थोड़ा सा उर्दू में बोलने में भी ये होता है ना, थोड़ा सा, जी है ना, उसको जी क्योंकि आप मैम। कन्वर्ट करके बोल रहे होते हैं, आप अपनी जुबान को। हाँ इस जी, बात के साथ आपसे छुट्टी भी लेनी है मैम। आज मैं जा रही हूँ चतराल, ठीक तो है, उधर शायद। ठीक चले है ठीक, मैम, आपको ठीक, पहुंचना चाहिए, ठीक है। एक ओके जी, हफ्ता लगेगा। चलें जी। अब आपने बाकी सारा जो है ना वीडियो से कवर करना है, ठीक है। ठीक है मैम, ठीक है, ठीक है जजाकिल्ला मैम। जी, भाई है की। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह। हमने यहाँ पर ढेरों ढेर लाम भी पढ़ लिए। ठीक है, किस चीज़ का ख्याल रखना है, स्वाद को हमने पुर अदा करना है। जब ये तनवीन है, इंशाल्लाह हम इदगाम वाला जब पढ़ेंगे ना टॉपिक, उसमें इंशाल्लाह ये और भी अच्छे तरीके से सीखेंगे। अभी के लिए क्या याद रख लें कि पूरा पूरा इनको आपस में मर्ज कर लें, फ़वैलुल लिल मुसल्लीन, यानी कि जो तनवीन वाला जो एक नून है ना, फ़वैलुन, ये नहीं आना बीच में। क्या, क्योंकि हमें आगे भी लाम नजर आ रहा, तो ये पूरा पूरा इसके अंदर मर्ज हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून। अच्छा जी, अल्लाजीना, बिल्कुल जैसे हम अल्लाह जी पढ़ते हैं, यहाँ तक तो बिल्कुल उसी तरह से हमने 2 काउंट देने ही देने। इसके बाद नून फतहा के साथ है, एक हरकत के साथ है, और अल्लाजी अल्लाजीना, यानी कि जो अस्मा होते हैं ना, उन्हें हम फ़तहा के साथ, या आप इसका ऐसे याद कर लें कि हमज़ातुल वस्ल से शुरू होने वाले अस्मा को हम फ़तहा की हरकत देते हैं, ठीक है? इसमें आपने कसरा भी नहीं देनी, दोम्मा भी नहीं देनी, इसको अल्लाज़ीना ही पढ़ना है। अगर अरअयत पर आप रुकते हैं, अल्लाज़ी से शुरू करना है, तब भी आपने इसको फ़तहा की हरकत देनी है, ठीक है? और अगर आप देखें कि अल्लाज़ीना दरमियान में आ गया ना, आपका साँस रुका, तो इसको अल्लाज़ीन कर लें। फिर दोबारा से अल्लाज़ीना से पढ़ें, ठीक है? अल्लाज़ीना हुम, राउंडिंग का ख़्याल रखना है, और मीम को ऐसे झटके से नहीं छोड़ देना। जैसे हम कहते हैं ना उस तरह से हुम। सिस्टर शबाना, आप ये वाली अगली आयत कीजिएगा, ठीक है? मैंने आपका हैंड देखा नहीं था। आपने ये जो अल्लाज़ीना हुम युराऊन, इसको कर लीजिएगा। अच्छा जी, इसको हम अनराउंडिंग भी करेंगे। इसके बाद आइन, इसको हमने वसतुल हलक से अदा करना है, ठीक है? इसके बाद यहाँ पर जो मैंने एक मोटी सी आवाज़ निकाली थी इख़्फ़ा की, हमने ये भी ख़्याल रखना है जब हम इंशाल्लाह अपने इदगाम इख़्फ़ा वग़ैरह करेंगे ना, कि अगर हमें मोटा लेटर नज़र आ रहा है ना, तो हमें इख़्फ़ा भी इस तरह से करना है कि सुनने वाले को पता चले कि नून साकिन आया, नून साकिन के बाद कोई मोटा लेटर आया था।
अच्छा जी, नून साकिन आ जाए या मीम साकिन आ जाए, फौरन से आपने अलर्ट हो जाना है कि यहाँ पर अब कोई कायदा अप्लाई होने लगा है। ठीक है, वो कायदा हम इंशाल्लाह ये अपने मखारिज कंप्लीट करें तो हम इंशाल्लाह इदगाम का चैप्टर शुरू कर लेंगे। इसके बाद बारी बारी मदूद वगैरह को हम इंशाल्लाह करते जाएंगे, सीखते जाएंगे। स्वाद में वो सारी चीज़ों का ख्याल रखना है, मुंह में हवा भर लें, मोटा सा अदा करें, होंठ आपके ना आगे आए ना गोल मोल हों, आपने ये ज़ुबान का लेटर है, ज़ुबान से ही अदा करना है। इसके बाद है लाम फतहा के साथ है, साथ हमें अलिफ भी नज़र आ गया, अलिफ मद यानी कि जौफ से अदा होता है। तो अब इसे क्या करना है, 2 काउंट भी देने हैं और इसको हमने भारी भारी नहीं करना क्योंकि लाम पतला है। तो इस अलिफ को जब हमने इसके साथ मिलाना तो ला करना, लॉ नहीं कर देना स्वाद को देखते हुए। अच्छा जी, उंगली रख लिया करें, स्वाद के बाद लाम है तो लाम पे उंगली रख लें ताकि स्वाद पतला ना हो। और आपने जब स्वाद अदा कर लिया तो स्वाद पे उंगली रखें ताकि स्वाद को देख के लाम को मोटा ना करें। ठीक है, अब इस सारे में यहाँ तक में देखें, बारीक 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 बारीक, अब सिर्फ और सिर्फ स्वाद को मोटा पड़ना है। इसके बाद आप देखें, ला के बाद जो ता है कसरा के साथ है, छोटा सा साथ ती लिख लें ताकि ते ना हो जाए, सोला ते नहीं है। ठीक है, सोला ती है। इसके बाद हिम, जैसे हमने हुम अदा किया ऐसे ही हमने हिम अदा करना है। इसके बाद सा, ये सौ और ये सा फर्क रखना है। ठीक है, सा हूँ। अब ये जो दोमा के साथ राउंडिंग का ख्याल रखेंगे और यहाँ पर किस चीज़ का ख्याल रखना है कि नून को हम खुद साकिन कर रहे हैं, और जब खुद साकिन करते हैं तो हमने 6 काउंट की मद बनानी है, मद आरिद लिसुकून। ठीक हो क्या? तो इस तरह से हम जो हमने आऊज़ु बिल्ला से शुरू की थी कि अपनी जो आखिरी वाला जो होगा लफ्ज़ जिसे हम साकिन करेंगे तो उसकी जो लेंथ है हमने 6 काउंट रखनी है। इसके बाद है अल्लज़ीना हुम युराऊन। सिस्टर शबाना आप आ जाएं। जी उस्ताजा जी, यहाँ ये हमजतुल वस्ल है, इसे हम लाम के साथ मिलाएंगे और लाम के ऊपर फतहा है, इसे 1 काउंट करेंगे और साथ में इसे मुरक्कक पढ़ेंगे क्योंकि इसम अल्लाह जलालहू के लाम के अलावा जितने भी लाम होंगे वो बारीक यानी मुरक्कक पढ़े जाएंगे। फिर हम लाम को 1 काउंट करने के बाद जाल को या से मिलाएंगे और जाल को नरमी से पढ़ेंगे, और या मद्दा है तो इसे 2 काउंट करेंगे हम। जी, नून के ऊपर फतहा है, इसे 1 काउंट करेंगे। अल्लजीना, हा को मीम के साथ हा को राउंड करेंगे और मीम के साथ मर्ज करेंगे। मीम साकिन है, ये वैसे इजहार शफवी भी कहलाता है, लेकिन अभी हमारा रूल नहीं हुआ है। हाँ जी बिल्कुल, अभी हमने तो किया नहीं यहाँ है। पे हम ध्यान करेंगे, नाक में आवाज नहीं ले जाएंगे। या को राउंड करेंगे क्योंकि या के ऊपर फतहा दम्मा है और इसे 1 काउंट करेंगे। रा को पुर पढ़ेंगे, मुरक्कक होगी क्योंकि रा के ऊपर फतहा है। साथ में इसके मद्दे मुत्तसिल भी आ रही है, मद्दे मुत्तसिल वाजिब। यहाँ पर हम 5 to 6 नहीं, 4 to 5, काउंट करेंगे, 4 to 4 to 5 काउंट करेंगे। और योर, फिर हम हमजा के ऊपर गम्मा है तो इसे राउंड करेंगे, साथ में से वाव के साथ मिलाएंगे और यहाँ पर 2 काउंट करेंगे और ये मद असली होगी। और हाँ साथ में अगर हम नून के ऊपर फतहा है, इसे हम अगर हम साकिन करते हैं, खुद सुकून करते हैं उस पे, तो वो मद आरिज लिसुकून होगी, तो फिर वो अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी 6 काउंट हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। और आपको तो एक ये बहुत और बात बताती हूँ, यहाँ पर ये जो एक हमें अलग सी चीज़ नज़र आई ना, हमें हमज़ा नज़र आया, ये वाव नज़र आई, इसका एक और नाम है। ठीक है, इसको भी हमने सीख लेना है। ठीक है, इसको मद बदल, और फिर जब ये हम खुद इसको साकिन करेंगे तो शबी बदल। ठीक है, फिर ये मद असली हम पहचान लेंगे। जब हम ये वाला कायदा कर लेंगे तो फिर हम इसको मद असली नहीं कहेंगे। ठीक है, तो ये कितना मतलब कह लें कि हम कब से ये सूरत पढ़ रहे थे, हमें ये छोटी छोटी चीज़ों का पता नहीं था। आपने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी चीज़ें सीखी हुई हैं, ये आपको याद है। तो ये देखें, छोटे छोटे और भी कितने सारे रूल हम सीखने वाले हैं। ठीक है, तो ज़रूर अल्हम्दुलिल्लाह कहा करें कि अल्लाह ताला ने हमें वैसे ये मैं डर मौका रही थी दिया। पता नहीं
ठीक है भाई, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहीं, डरा ना करें, मैं तो खुद कहती हूँ डरा ना करें। मैंने मैं वैसे फर्स्ट टाइम एक्सप्लेन किया है। हाँ जब से अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये चल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह पहली बार किया देखिए ना, है। ऐसे कॉन्फिडेंट बढ़ता है ना। और सिस्टर अतिया, आपने भी पीछे नहीं हटना, ठीक है? अपने लिए गोल सेट किया इंशाल्लाह। करें कि मैंने करना है, मुझे ये करना है, तो इंशाल्लाह करने लग जाएंगे आप। मैं ट्राई कर लूं सिस्टर नेक्स्ट सिस्टर विशाल, विशाल यस बिल्कुल। चले आप ये ना कहा करें मैं ट्राई कर लूं, कहा करें हाँ मैंने ट्राई करना है, मुझे सही बताया सही करें ठीक मेरे पास कौन सा ओके स्टिक है। हाँ सही सही ठीक मैं है, इसमें है वाव वाव को राउंड करेंगे और ठीक है, 1 काउंट तक ले जाएंगे ठीक है, और या मद सॉरी या फतहा मीम को ये मिलाएंगे ठीक और है, इसमें आवाज को हिलाना नहीं है क्योंकि ये लेन बिल्कुल उमर में बिल्कुल। से वो है नहीं आप ठीक है और इसलिए नून को कहेंगे, 1 काउंट हाँ आप कहेंगे कि बस क्योंकि ये कलकला वाला नहीं है ना, तो बस यम हो जाए, यम ना हो जाए, ठीक है। ठीक ठीक और नून को 1 काउंट करेंगे ठीक है, और आइन आइन द्वम्मा वाव को 2 काउंट करेंगे बिकॉज इसमें मद असली है और अल्हम्दुलिल्लाह, नून को अगेन वन वन काउंट करेंगे और इसको ठीक मिलाएंगे लाम से और है, ये हमजा जो है इसको क्रॉस कर लेंगे इसको हटा देंगे हटा दिया। ये नल हो जाएगा और हम्म, मीम फतहा और अलिफ इसको 2 काउंट करेंगे बिकॉज ये भी मद असली बन रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, और आइन दम्मा वाव को 6 काउंट करेंगे बिकॉज इसके आगे फिर नून है उसको हम साकिन करेंगे और ये बन जाएगा मद आरिद लिस्सुकून सुकून, अल्हम्दुलिल्लाह जी, सुम्मा यस अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, एक खुशी आपको होती है कि मैंने ये किया, एक खुशी हमें यहाँ बैठे होती है कि अल्हम्दुलिल्लाह से देखें, जब हमारी पहली क्लास थी सब थोड़ा थोड़ा सा डरे हुए थे ना, हमें ये डर होता है कि ये ना हो कि हम सिखा ना पाए, और आप लोगों को ये होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम कुछ गलत बोल दें। आपको अब माफी है, ठीक है, आपको इसमें माफी है मुझे गलत एक बोलने की। लफ्ज तक नहीं आ रहा था मतलब ये सब हाँ, कुछ मैंने यहीं से सीखा है अल्हम्दुलिल्लाह एक अल्हम्दुलिल्लाह। लफ्ज तक मुझे नहीं आ और रहा था सिस्टर इसमें विशाल ने भी बहुत सारे, मतलब जो हमारे शुरू होते थे, हम लोग भी करवाते थे, सिस्टर को याद ही होना, जो तजवीद की क्लासेस करवाते होते थे, तो हमने भी वहां से उतना नहीं सीखा जितना हमने अल्हम्दुलिल्लाह से मिस बाबा जी से, बल्कि सब कुछ कह लेंगे हमने वहीं से ही सीखा है। तो सिस्टर समिया है हमारे साथ, समिया उसामा, याद चली गई है, एक मिनट जो देख रहे हैं, मेरा ख्याल है वो चली गई है। मैम ये समिया फरहत है। नहीं, समिया उसामा है। उसामा है। अच्छा, हाँ जी, एक मेरे को, समिया फरहत भी है। अच्छा। अच्छा, जो लोग बिल्कुल भी नहीं बोलते, सिर्फ एज अ लिसनर बैठे हुए हैं, आप लोगों ने भी कोशिश करनी है, ठीक है? आज नहीं कोशिश हुई कोई बात नहीं, अगली क्लास में कोशिश करें, उससे अगली क्लास में कोशिश करें, कोशिश करेंगे, हम आपकी आवाज़ें भी सुनना चाहते हैं ना। कुछ हमें फिर पता भी चलता है ना कि आप लोग कितना सीख चुके हैं, कितना, कहाँ आप लोगों को ज़्यादा ज़रूरत है तवज्जो की, या हमें कहाँ पर ज़्यादा ज़रूरत है आप लोगों को तवज्जो दिलाने की। तो सब ज़रूर बोला करें, ज़रूर इसको सीखें, ताकि इंशाल्लाह हम अपने कुरान को बहुत खूबसूरती से अदा कर सकें। अच्छा, हमारे पास 10 मिनट हैं। 10 मिनट में हम ये कर सकते हैं कि आपसे सूरह कौसर सुन लूँ या इसकी मैं आयत सुन लूँ, ये अब आप मुझे बताएँगे। अगर तो इसी की आयत आपने ये प्रैक्टिस करनी है, तो ये वाली सुना लें। मुझसे नहीं है इसके ये आयात। सुनाएंगे इसी को सुना लेते हैं उस्ताद जी। चलें, हम्म, चलें एक बार फिर अब अपने हैंड रेज़ कर लें। आपके हाथ थक तो नहीं गए? नहीं नहीं चलें जी। बताइए हैंडरेक कहाँ से करते हैं? अच्छा, ये कौन कह रहा है कि हैंड रेज़ कहाँ से करते हैं? हम उनको वैसे ही उनका नाम लिख लेते हैं अपने पास। रिएक्शंस जो नीचे आ रहे हैं ना ये जो पार्टिसिपेंट आता है ना, यहाँ पर आप जाएं, इसके साथ वहां चैट पर आता आपका है नाम क्लिक करें। मैंने कहा था चाहे वैसे मुझे अपना नाम बता दें, मैं अपने पास आपका नाम लिख लेती हूँ। कौन सी सिस्टर थी? चलें, सारी सिस्टर्स खामोश हो गई हैं। इतनी सारी औरतें और खामोश। चलें जी मैं सिस्टर। मैं स्टार्ट करूं
अच्छा जी, कि ये किसने कहा? मैं, विशाल। विशाल ने। अच्छा जी, यस। मैं अब आपको बताती हूँ, ठीक है। सिस्टर सही विशाल, मैं यहाँ नाम लिखने लगी हूँ। सही। विशाल, इसके बाद है सिस्टर शाजिया, सिस्टर सादिया, सिस्टर नसरिया। आप गई नहीं? चले अगर मैं ये, इधर ही हूँ। अच्छा 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 मैं इधर अच्छा। और इसके बाद है सिस्टर सदफ। किसी का नाम रह तो नहीं गया? एक दो तीन चार पांच सिस्टर्स हैं हमारे पास, ठीक है। चलें जी। और आयात कितनी है हमारे पास? 7 हैं, ठीक है। ये 7। 5 लोग सुना लें, फिर 2 और सिस्टर्स आएंगी, ठीक है। आप पांचों सुना के अपने हैंड डाउन कीजिएगा, ताकि फिर इंशाल्लाह। अच्छा, एक हैंड और रेज हुआ है, सिस्टर अतिया, ठीक है। सिस्टर अतिया, चलें एक रह गया, वो भी हो जाएगा इंशाल्लाह हमारी शुरू करते तक। चलें सिस्टर, सिस्टर विशाल आपने शुरू करना है। आप ताउज़ और बसमला दोनों पढ़ेंगी, ठीक है। सही। और आयत नहीं पढ़नी आगे? नहीं, पढ़ेंगी पढ़ेंगी, पहली आयत भी पढ़नी है, आपने शुरू करना है सही। ना। ठीक है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अच्छा, एक मिनट रुकिए, अरअई। एक मिनट, एक मिनट रुकिए, एक जी मिनट। जी। सिर्फ थोड़ा सा झटके दे दे के ना पढ़े। आप पढ़ रही सही हैं ना, ये मेरा छोटा बेटा ना, वो भी थोड़ा सा ऐसे पढ़ता है, उसका मैं कहती हूँ सही। कि झटके ना दिया करें, ठीक है। हाँ झटके देने से पता है क्या होता है? ऐसे लगता है जैसे हर हर जो लफ्ज है उसमें कलकला होता जा रहा है। आराम से पढ़े, सही। एक बार आऊज़ु बिल्लाह से आराम से पढ़े। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, पहले से मच बेटर है। बिस सही। में बिस हो रहा है, ठीक है। इसको आराम से कौन से पढ़ें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह। अब आप पढ़ें पहली आयत। अरअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन। अच्छा सिस्टर, आपके ना जो थोड़े थोड़े झटके आते हैं, अच्छा ये किसी ने नहीं सही करना, ये आपको खुद करना पड़ेगा। ये कैसे आप करेंगी? आप कारी का सुने, ठीक है। फिर आप सही। स्मूथ स्मूथ पढ़ने की कोशिश करें। कैसे? आप एक लंबा सांस खींच लें अरअयतल्लज़ी। और पुरसुकून आप पढ़े रो ऐ, ठीक है। अरअय अरअयतल्लज़ी। अरअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन। अल्हम्दुलिल्लाह, देखें 2 से 3 में आपका अरअयतल्लज़ी। काफी बेहतर हो गया, सही। ठीक है। ठीक। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सिर्फ मुझे 1 मिनट दीजिएगा, मैं दरवाजा खोला। सिस्टर शाजिया ने पढ़नी है अगली आयत, ठीक है। मैं दोबारा आती हूँ, फिर पढ़िएगा। जी। सही। فذلك الذي يدعو اليتيم يدعو اليتيم أرأيت الذي ذلك الذي يدعو اليتيم يدعو اليتيم. अच्छा जी, मेरे पीछे मेरी क्लास बोल रही थी, ठीक हो गया। मैं अब नेक्स्ट बोलने टाइम पढ़ रही थी, पढ़ मुझे रही नहीं थी। पता था कि मेरे स्पीकर ऑन है। अच्छा, हाँ, अब मैं आइंदा से कहूँगी अपने सारे बच्चे अपने लिप्स पे फिंगर रखें, बस ऐसे चुप करके बैठ जाएँ। नहीं, नहीं, ज़रूर बोलें, ज़रूर मैं पढ़ा करें। प्रैक्टिस कर रही थी। हाँ, बिल्कुल, मुझे कुछ करना पड़ेगा आप लोगों का। अच्छा जी, सिस्टर मैं शाज़िया आप प्रैक्टिस आए। कर रही थी। चलें जी। सिस्टर शाज़िया आप आए। जी।
فذلك الذي يدعو اليتيم. अल्हम्दुलिल्लाह। आइन को ना अब आप कारी का सुनिएगा ना, अब गौर से सुनना है, जी स्लो करके कि वो जी कैसे पढ़ने हैं। यदुल यतीम के आइन की आवाज भी आनी है और झटका भी नहीं आने देना। ठीक है, इसको जी कैसे बिल्कुल। आराम से पढ़े ना, फिर वो बहुत प्यारा सा अदा हो जाता है। ठीक है, एक दफा फिर पढ़ के अल्हम्दुलिल्लाह। देखो। पढ़ के देख ले। فذلك الذي يدعو اليتيم. अल्हम्दुलिल्लाह। और अब सबको मैं कह रही हूँ, आपने ना ज़्यादा कोशिश करनी है, क्योंकि हम सूरह फ़ातिहा पढ़ते ही पढ़ते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुल यहाँ पे अल ख़त्म हो गया ना, हर जगह से ख़त्म हो जाएगा, ठीक है? तो ये थोड़ा-सा जहाँ पे आप लाम मिलाते हैं ना, थोड़ी-सी आवाज़ झटके वाली आती है, इसको हमने ख़त्म करना है। ठीक है? तो सूरह फ़ातिहा में ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी है। इसके साथ-साथ जब हम तस्बीह फ़ातिमा करते हैं, फ़जर और असर के साथ हम अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हैं, सुबहान अल्लाह, इसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह। ये नहीं कही जाना अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आराम-आराम से करें, तस्बीह भी आराम से किया करें। फिर ये जो छोटी-छोटी सी मिस्टेक्स हैं, ये सारी निकल जाती हैं, ठीक है? अच्छा जी, अब आएँगी सिस्टर सादिया, तीसरी आयत पे। जी। ولا يحض على طعام المسكين अल्हम्दुलिल्लाह, याकूब को दोबारा पढ़ें ज़रा। ولا يحض على طعام المسكين अल्हम्दुलिल्लाह, बेहतरीन है। आगे, अब आ जाएँ सिस्टर, क्या नाम लिखा था मैंने? अच्छा जी, सिस्टर नसरिया आप आएँ। فويل للمصلين. ये तो चीटिंग होगी, आपने एनालाइज़ भी यही की थी, पढ़ी भी यही है। ये तो मेरे नसीब की बात है मैम. अच्छा, अच्छा, मेरे थोड़ी साथ भी ऐसे हाँ। ही है। मैंने जो एनालाइज की थी वही मैंने पढ़ी थी। अच्छा, अच्छा, अब इसको पता है क्या करना? फ़वई, इसको कोशिश से वई बनाएँ। आप कहें वई जी मैं दुबई, वई दुबई, वई दुबई, बार-बार कहेंगे ना, मुँह पे चढ़ जाएगा। अब ये जो थोड़ा-सा दोबारा चौड़ा हो रहा है ना लफ्ज़, वाय नहीं करना, ठीक है? वई। जी दोबारा पढ़ लूं मैं. हाँ, पढ़ें, पढ़ें। فويل للمصلين. अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, अब आ जाएँ सिस्टर सदफ़। जी मिस الذين هم عن صلاتهم ساهون. अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। सारी सिस्टर ने सुना, इन्होंने सबसे पहले जिस चीज़ का ख़्याल रखा ना, आराम से पढ़ा है, ठीक है? आराम से पढ़ने में हर्फ़ के हर हर्फ़ का हक़ अदा हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह, एक्सीलेंट सिस्टर। अच्छा सिस्टर अतिया आएँ, बगैर डरे हुए जी हैं अतिया, मैं आपको पहले ही कह रही हूँ। الذين दोबारा पढ़ें, पढ़ा ना को लंबा नहीं करना। الذين هم يرعون. अच्छा, ये जो जो है ना ये ना इसका होंठों का कोई काम नहीं होना चाहिए इसमें, क्योंकि हमने कहा है कि जो है अल-लिसान ज़ुबान से अदा होता है, ठीक है? यूरा यूराऊन मद मुत्तसिल يرعون. भी है जी, अल्हम्दुलिल्लाह से मद मुत्तसिल भी है और इसके साथ मद आरिद लिस्कुन पर आपने अच्छा पढ़ा, अच्छी कोशिश है, बेहतरीन कोशिश है। कोशिश है ना, हम इंशाल्लाह जितनी ज़्यादा करते जाएँगे उतना ज़्यादा हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है? आपका नाम मुझे याद हो गया सिस्टर अतिया, अब मैंने आपको कहीं भागने नहीं देना, ठीक है? इंशाल्लाह. ठीक है? तो जी इंशाल्लाह क्योंकि देखिए ना जज़ाकल्लाह. जो जिन स्टूडेंट्स को आता है ना, जिन्होंने थोड़ा-थोड़ा सीखा या जो सही पढ़ रहे हैं, उसकी निस्बत जिन्हें नहीं आ रहा, उनको ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत होती है ना, तो हम ऐसे नहीं करेंगे कि जी किसी को पीछे छोड़ें, सब एक साथ इंशाल्लाह आगे जाएँगे। अच्छा एक असल में मैंने मैम सब बहनों ने मेरा ख्याल है ये क्यूसी किए में है ना, तो मैंने वो सिर्फ वन किया हुआ है. ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो मुझे इतना इसका अंदाजा है. हाँ, हाँ, उसमें पता है क्या फ़ायदा क्या हो जाता है? QC2 आप करें, ज़रूर करें। उसमें ये फ़ायदा हो जाता है, हमें बहुत से अफ़आल का पता चलता है कि हम यहाँ पर अगर लंबा करेंगे, छोटा करेंगे तो क्या-क्या फ़र्क आएगा ना? तो अब जी एक सिस्टर शगुफ्ता ने हैंड रेज़ किया था। आप ये जो आखिरी वाली आयत पढ़ लें। सिस्टर शगुफ्ता हैं हमारे साथ?
जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व वालेकुम बरकातुहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वयमनऊनल माउ। सिस्टर दोबारा पढ़ेंगी और आराम से पढ़ेंगी। जी वयम वयमनऊनल माउन। अल्हम्दुलिल्लाह। जब आप तेजी करते हैं ना, तेजी से पता है क्या होता है, ये ऊ के 2 काउंट निकल गए, माँ के 2 काउंट निकल गए। ठीक है, तो ये इस चीज़ का ख्याल रखना है कि तेजी नहीं करनी। ठीक है क्या? तो अल्हम्दुलिल्लाह से हमारी क्लास का टाइम भी पूरा हुआ। चलिए थोड़ा थोड़ा सा सुना भी गया। और कायदे का ये जो साथ साथ आप लोग पढ़ते हैं ना, ये आपकी प्रैक्टिस ही है। ठीक है, तो किसी का हैंड रेज हुआ, सिस्टर सदफ। पहला वाला पुराना हैंड है या आपका नया हैंड रेज हुआ? पहले पहले किया था। अच्छा, और सिस्टर शबाना? फिर पुराने पुराने हैंड्स हैं ये सबके। सिस्टर शगुफ्ता? टीचर मैं एक चीज ये पूछना चाह रही थी। ऐड नहीं करना। मैं वॉइस में बोलती हूँ तो आप मेरी बात ही नहीं सुन रही। अब मुझे आवाज ही नहीं आई आपकी। कौन सी सिस्टर बोल रही हैं ये? शाकरा बोल रही हूँ। सिस्टर शाकरा का हैंड रेस किसी ने देखा था? नहीं। अच्छा, चलिए सिस्टर शाकरा, आप पढ़ना चाहती हैं? पढ़ लें। सिस्टर शाकरा, आपके शायद नेट में कोई इशू हो, क्योंकि देखिए आपकी आवाज फिर से नहीं आ रही। माइक ऑन करना उनको शायद ना वो हो। माशाल्लाह CQC 2 में है माइक, तो उनका वैसे अच्छा अक्सर ऑन रहता है। मेरा वाईफाई नहीं आ रहा। मेरे हस्बैंड की मोबाइल से जो पैकेज लगा हुआ है ना उससे कर रही हूँ, इसलिए प्रॉपर आपको अब मेरी आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है आवाज। अब दोबारा अब आप सुना सकती हैं। आप अब जरा बोलें। मैं ये कह रही हूँ कि मेरा वाईफाई नहीं आ रहा। नहीं, मेरे मैं हस्बैंड कह की रही हूँ, ये मोबाइल से समझ आ पैकेज। गई मुझे। आपने अगर सुनाना है तो सुना ले, मैं ये कह रही हूँ। अगर आपने सूरत पढ़नी है तो पढ़ लें। पढ़ना चाह रही हैं? जी जी। पढ़ें। ये सूरह माऊन की ना आखिरी आयत पढ़े। ठीक है, पढ़ें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। الذين هم يراءون ويمنعون الماعون। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आपने आयात बेहतर पढ़ी हैं सिस्टर। ये जो है ना ताउज़, इसको थोड़ा सा और बेहतर करें। ये जो देखें 2 काउंट है ना, 2 काउंट ये आपने देने हैं, इसको आप छोड़ नहीं सकते। ठीक है, ये 2 काउंट है, ये 2 काउंट है, ये 2 काउंट है, ये फिर 6 है। और रॉ, यहाँ भी रॉ, यहाँ भी रॉ। ये सारे फतहा के साथ है, सारे मुफख्खम है। ठीक है, इस चीज का ख्याल रखना है। जल्दी नहीं करेंगे ना, एक एक लफ्ज को देख देख के आराम आराम से पढ़ेंगे तो फिर ये सारे हुकूक अदा हो जाएंगे। ठीक है, देखें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ये शई भी आ गया, जैसे मैं कहती हूँ दुबई की तरह शई। ठीक है, इसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रॉ के साथ लिख लें मुफख्खम, यहाँ लिख लें मुफख्खम, यहाँ लिख लें मुरक्कक, इधर लिख लें मुरक्कक। ठीक है, अपना जो बुक मार्क कैसे बनाना है, आपने लिख के आऊज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह लिख के साथ ये छोटी छोटी सी हेडिंग देनी है। मी लिखें, यहाँ पर राउंडिंग लिखें, राउंडिंग लिखें। ठीक है, और इसके बाद ये जो 2 काउंट लिखे हैं यहाँ पर ये भी लिखें कि इसको तौ नहीं करना। ठीक है, तौ की आवाज ना आए। सिस्टर शगुफ्ता जी, आपका कोई कमेंट, कोई क्वेश्चन? जी टीचर इसके अलावा भी क्वेश्चन कर सकते हैं? आपने 2 डिवाइस तो नहीं लगाए हुए या नहीं हैंड फ्री लगाए हुए? आ रहा है। आप जब बोलती ना पीछे शोर काफी आता है, फिर वो मुझे बात की समझ नहीं आती। नहीं ये मैं शाकरा। अच्छा, उनका हम माइक जरा बंद करते हैं। ये असल में मिस शाकरा की क्लास तो उनकी आती है बैकग्राउंड।
ठीक है, अब आप बोले सिस्टर शगुफ्ता। मैं ये पूछना चाहिए थी, इससे हट के भी क्वेश्चन कर सकते हैं, तजवीज से हटकर अगर पूछना चाहें कुछ, हाँ पूछिए जरा। मतलब QC5 से रिलेटेड पूछ सकती हूँ मैं हाँ कुछ? पूछ लें पूछ लें पूछ लें। जी। अच्छा, इसमें हमारे पास QC5 में एक क्वेश्चन है जो कि बेसिकली नस्ब से रिलेटेड है, जी और उसमें पूछा जाता है कि आपको वो बनानी है, जमा बनानी है, ठीक है, और जमा ऐसा बनाना है कि काना लगाना है, काना का इजाफा करना है। तो पहला वर्ड है अल मुस्लिमु सादिकुल। मुझे समझ नहीं, दोबारा बोले। अल मुस्लिमु सादिकुल। अल मुस्लिमूना स्वादिकूना, ये कह रहे हैं आप? जी बिल्कुल। ठीक है। अब ये किस तरह से बनाएंगे, एक मतलब आप अंदाजा बता सकती हैं? अच्छा, आपको ये इतना तो अंदाजा है ना कि ये है एक जुमला, इस्मिया जुमला। अगर अच्छा अब बाकी लोग जाना चाहते हैं तो चाहे चले जाएं, हम इसको ना मैं मैंने इससे आप बता दूं, ठीक है? व्हाट्सएप भी किया है मैंने आपको। जी मैं कह रही हूँ मैंने आपको व्हाट्सएप किया है। अच्छा, आपने मुझे मैसेज भी किया। चले ये सिस्टर, मैं फिर आपको इसका आंसर देती हूँ। अभी के लिए आप इतना समझें कि इस्मिया जुमला, इसके ऊपर हमने काना दाखिल करना है ना, यही आपका जी क्वेश्चन है ना। फिर काना का एक इस्म होगा और एक इसकी खबर होगी, ठीक है? जो हाँ। इसका इस्म होगा वो मरफू होगा और इसकी जो खबर होगी मंसूब होगी, ठीक है? तो अब इसको कैसे करना है? अगर तो आप काना लेके आएंगे शुरू में तो फिर सिर्फ काना ही होगा, इसको कानूनी करेंगे। जो हमारे अब आपने, हम अपने स्टूडेंट्स को QC1 से समझा देते हैं कि जो हुआ है, सॉरी QC2 से, क्योंकि QC1 में इतनी ज़्यादा नहीं ज़रूरत पड़ती, QC2 से, कि जो हुआ वाला जो होता है ना, जैसे काना है, इसी तरह जो मुअन्नस में कानत है, इसमें क्या होता है कि इसमें आप इसके बाद जो फ़ाइल नज़र आता है ना, या जो हमें इस्म नज़र आता है, वो ज़्यादा भी जमा वाला भी यूज़ हो सकता है, ठीक है? लेकिन अगर पहले आ जाए उसके बाद फ़ेल लाना हो तो फिर हमें फ़ेल जमा वाला लाना पड़ता है। यानी कि हम काना अल मुस्लिमूना, इसको बदलना पड़ेगा, इसको हमें मंसूब लाना पड़ेगा, ठीक है? ये स्वादिक़ीना हो जाएगा, ठीक है? हाँ, ये कैसे होगा, ये सादिकीना, ये मुझे नहीं स्वादिक़ीना को समझ मंसूब, अच्छा, अब आप QC1 पे आए। QC1 में हमने कहा था कि स्वादिक़ुन होगा, तो इसकी जमा क्या होगी? ये होगा सादिकुना। जी 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 बिल्कुल। ठीक है। और स्वादिकिन और स्वादिक़न, इनकी जमा क्या? इसकी कीना, कीना बन जाएगी। स्वादिकीना। अब एक और आसानी में आपको बताती हूँ। आप जब ऐसा जुमला देखें अल मुस्लिमुना स्वादिकुना, आप क्या करें? अल मुस्लिमु अस्वादिकु, ठीक है? बल्कि स्वादिकुन होना चाहिए, स्वादिकुन। ये एक सिंपल जुमला है, जुमला इसमिया, ठीक है? अब हमने इसको काना लगाना है, ठीक है? कानल मुस्लिमु, मुस्लिमु। अब आपने ये जो स्वादिकुन है इसको मंसूब लाना है, तो कैसे लाएंगे? अब ये स्वादिकुन था तो आप इसको क्या कर लेंगे? सादिकन। सिंपल। स्वादिकन कर लेंगे, ठीक है? ठीक है, स्वादिकन कर लेंगे ना। अब इस स्वादिकन की जमा बना लें, क्या जमा बनेगी? ओह अच्छा 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 अच्छा, ठीक मैं है, समझी। ठीक हो गया। चले जी, फिर भी समझ ना आए तो आप मुझे पर्सनल पे मैसेज भी कर सकती हैं, ठीक है? अच्छा, हमने तो अपने स्टूडेंट्स को बड़े आसान आसान गुर बताए हुए हैं, तो किसके जी पास हम करें QC5? आपने बहुत इजी बताया। जी मैं कह रही हूँ आपने बहुत अच्छा और इजी बताया है। हाँ जी, मैं पूछ रही थी QC5 आप किससे कर रही हैं? ये है अल्फना कराची बुक जो है ना, उससे करती हाँ चलें, सीखा तो हमने भी। असल में ना हमें बड़े अच्छे अच्छे मेंटोर मिले, मैम फ्रीहा, ख़ास तौर पे, ख़ासुल ख़ास तौर पे सर शहजाद से हमने पढ़ा, उन्होंने हमें बड़े आसान आसान तरीके बताए। फिर हम लोगों ने जो खुद हमें मुश्किलात आती थी, हमने अपने स्टूडेंट्स के लिए वो और भी आसानियाँ की हैं। तो आपको जहाँ कहीं मुश्किल आए आप मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है? चलो जी, हैं। इंशाल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह खैर। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा जी, सबको अल्लाह वालेकुम हाफ़िज़। सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू या उस्ताजी।
अच्छा जी, आप भी हमारे साथ थे। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह जी। जी, हाँ, लो जहाँ जान बेच कर भी जो इल्मो हुनर मिले, जिससे मिले जहां से मिले जिस पर मिले। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल।